Hare Krishna, Prabhu, no wise. Sorry, Mataji, sorry. Now it's okay. On the unit of voice okay. Yes, now. No, it's okay. I didn't switch on the mic. That's a mistake from my side. Right. Yeah, now It will only be hearing his voice because the laptop is one direction. So bring that gadget, will give one to him. Bring that gadget, will connect your mouth. Yeah. Okay. Anjaha, directly statu, to stand, tvaya, by you, aviramitaha, filled with joy, bata, certainly, parayamaha, will we be able. Are you able to hear Mataji now? Hare Krishna, Mataji. Yes, Prabhu, yes. Or not clear? स्पष्ट है, सुन सकते ना? Yes, it's first, yeah. Is Parmeshwar Clear. clearer than mine? नहीं, शिवल्लभ का आवाज क्लियर होता है क्या? Yes, हाँ, Prabhu. hear Prabhuji's voice. Perfect. Translation. O lotus-eyed one, the goddess of fortune considered it a festive occasion whenever she touches the soles of your lotus feet. You are very dear to the residents of the forest, and therefore we will also touch those lotus feet. From that time on, we will be unable even to stand in the presence of any other man, for we will have been fully satisfied by you. Shri Ryat Padambuja Rajas. Can you say something on that? Yeah. Say something. Yeah. Hare Krishna. So, as we saw in the previous verses, it was Krishna who told them to go back, giving various reasons. I am a brahmachari, you are all pativritas, you are not supposed to come and stay in the nights. Go back. Then he is telling, this is a night, and night time it's always dangerous. And he is telling, go on back home, do all your duties routine, which is important for you. So do not leave the home and come back. Like that he explains. Then the gopis were feeling very bad. वो लोग सोच रहे अभी हम लोग जाने के लिए इच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हम लोगों को एक ही विषय है, आपका पाद सेवन बहुत जरूरी है, नहीं है तो हम लोग यहाँ ही हमारा शरीर छोड़ देगा. Then they are talking more than that. They have got the complete knowledge of the Supreme Lord, and they are telling this is the ultimate goal, and we do not want to go back at all at home. Like that they are telling. In this verse, we can understand they are comparing. In the even the previous verse also, she is talking about the goddess of fortune, how always she is serving the Lord eternally. Same way, the gopis also they want to do always. Here also, they are explaining this in this verse. How they are explaining? Gopis are explaining for every time and each and every occasion. Whenever she touches the lotus feet of the Lord, it becomes a festival. क्योंकि जैसे उत्सव मनाने ऐसे होता है. You are very dear to the residents of the forest, and therefore we will also touch your lotus feet. इतना भी हम लोग रहते हैं, हम सभियों को आपका पद कमल को चुनने के लिए इच्छा है. From that time आगे उन्होंने ये भी बताता है, कैसे बताते? ऐसी एक बार आपको स्पर्श किया होगा तो आगे हम लोगों को किसी के सामने रुकने के लिए और देखने के लिए भी मन में इच्छा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आपका पद कमल का स्पर्श होने के बाद हमारा हृदय सब कुछ संतुष्ट हो जाएगी. This one just allows a unilateral mic, unidirectional mic. This one. So which you can use. Okay. Verse number 37. 37. Sham padikire. One second. Shri Yat Padam Bujarajat Shakame Tulasya Labdvapi Vakshashi Padam Kila Bhratyajushtam Yasyaha Swavikshana Utanya Sura Prayaha Tadvat Payam Shatavapada Raja Prapannaha Shri, the goddess of fortune, wife of Lord Narayana, yet has Padam Puja of the lotus feet, Rajaha, the dust, Chakame, desire, Tulasya, together with Tulasi Devi, Labdua, having obtained, Api, even Vakshasi, upon his chest,
Padam, a position, killer. Indeed, Bhritya, the servants, Jushtam, served, Yasyaha, whose Lakshmis, swear upon themselves, Vikshane, for the sake of the glance, Uta, on the hand, Anya, of the other, Sura, demigods, Prayasaha, the endeavor, Tattva, in the same way, Vayam, we, Cha, also, Tava, your, Pada, of the feet, Rajaha, the dust, Prapannaha, have approached for shelter. Translation. Goddess Lakshmi, whose glance is sought after by demigods with great endeavor, has achieved the unique position of always remaining on the chest of her Lord, Narayana. Still, she desires the dust of his lotus feet, even though she has to share that dust with Tulasi Devi and indeed with the Lord's many other servants. Similarly, we have approached the dust of your lotus feet for shelter. Purport. The gopis here point out that the dust of the Lord's feet is so ecstatic and enlivening that the goddess of fortune wants to abandon her unique position on his chest to share with many other devotees a position at his feet. Thus, the gopis urge Lord Krishna not to be guilty of double standard, since the Lord gave goddess of fortune a place on his chest and also allowed her to seek the dust of his lotus feet. Krishna should certainly give the same opportunity to his most loving devotees, the gopis. After all, the gopis plead, seeking the dust of your lotus feet is perfectly justified and should encourage us in this endeavor and not try to send us away. यहाँ गोपियों ने प्रार्थना करती है, भगवान उनको जाने के लिए बोल दिया, मगर गोपियों ने क्या कहती है, लक्ष्मी जी हमेशा आपको पद सेवन करते हुए उसमें जितना भी धूलि है वो प्राप्त करती है, मगर क्या होता है उनको और दूसरों को भी शेयर करना ही पड़ता है। कौन कौन है? तुलसी महारानी है और भी कोई। और ये सेवा के अलावा उनको क्या होता है, भगवान का वक्षस्थल, नारायण का वक्षस्थल में हमेशा निवास है। निवास होते हुए भी उनको वो पसंद नहीं है, मगर क्या कहती है, मुझे चाहिए भगवान का चरण कमल का धूलि। इसलिए पाद सेवन में हमेशा वो बैठ के हमेशा के लिए सेवा करती है। ऐसी आम लोगों को भी चाहिए। अभी कंपटीशन आ गया, भगवान का कमल चरण का धूलि के लिए कंपटीशन बहुत बढ़ गया। गोपियों ने वही कहती है, ये उनको भी दिया है मगर हमको भी देना चाहिए, क्योंकि हम लोग को आपको ऊपर इतना प्रेम करता है। हम लोग क्या क्या हमारा कुटुंब वगैरह सब छोड़ के आया, इसी समय यही आप करेगा तो निधि बराबर रहेगा। सो यू शुड ऑलवेज ऑल्सो एनकरेज अस इन दिस एंडेवर। ये प्रयास में हमको आप भी क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को यही चाहिए जीवन भर के हमेशा आपको पद कमल को सेवन करना है, मगर आप कभी भी बोलना मत हम वापस जाने के लिए, ऐसे कहते हैं। देखिए इसमें एक विषय हमको मालूम होना चाहिए, लक्ष्मी जी हमेशा के लिए सेवन करती है। हम लोग 9 प्रकार का भक्ति का विधि विधान है, श्रवणम कीर्तनम लेकर पाद सेवनम बोलेगा तो हम लोग किसका नाम लेता है, हमेशा लक्ष्मी जी को। हर वक्त उन्होंने नारायण का पद कमल को सेवन करते रहती है, कोई भी समय पे वो निकलती नहीं है। मगर भगवान क्या किया, उनको अपना वक्षस्थल में विशेष स्थान दिया है। आप लोग जैसी दक्षिण भारत में विष्णु मंदिर में जाएगा तो हर एक जितना भी विष्णु मंदिर है उसमें भगवान का वक्षस्थल में ये चिन्ह होगा महालक्ष्मी जी का, उनका अच्छी तरह से फूल से सजा भी किया होगा। तो ऐसी इतना विशेष पूर्वक भगवान उनको वक्षस्थल में स्थल देने के बाद भी उन्होंने क्या चाहती है, हमेशा मैं भगवान का पद कमल का सेवन चाहिए, उसको छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगा। कोई कोई आचार्य की तरफ देखेगा तो वो भी क्या चाहता है, जितना भी आचार्य का जो वैष्णव सांग सुन लो, पद कमल का महत्व ज्यादा होता है। सवई मनः कृष्ण पधार विद्यो, कौन बता रहे हैं, अम्बरीश महाराज क्या कहते हैं, सबसे पहला उन्होंने अपना अंग और हर एक इंद्रिय को भगवत विषय में लगाते रहते हमेशा के लिए, राजा होने के बावजूद भी। इसका मतलब उनको हर वक्त भगवत स्मरण में रहने के लिए इच्छा है, इसलिए सवई मनः कृष्ण पदारविंद, भगवान का पदारविंद को हमेशा स्मरण करते रहे। फिर मन क्या हो जाता है, उसमें हमेशा बैठ जाता है। ऐसी मन बैठ गया तो भगवान का कमल चरण प्राप्त हो गया तो हमारा असली उद्देश्य पूर्ति हो गया।
ऐसे ही देखो तो और एक वैष्णव सॉन्ग है श्री गोपाल दास, क्या लिखते हैं उन्होंने, भजहुरे मन श्री नंदन नंदन अभय चरण। ये अभिलाष किसका? गोविंद दास का अभिलाष। उन्होंने क्या कहता है? भजहुरे मन श्री नंदन नंदन अभय चरण अरविंदरे अरविंदरे। सो हर चीज में जितना भी स्तुति है, जितना भी वैष्णव सॉन्ग है, हर एक में आचार्य लोग वही हमेशा कहते हैं। सो इसका मतलब हर एक भक्त को चाहिए भगवान का पद कमल। और एक आचार्य इसके बारे में व्याख्यान दे देते हैं, भगवान का कमल चरण से जो निकलता है वो इतना अमृत है, वो पीने के लिए हम हमेशा इंतजार होना चाहिए। प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? भगवान का पद कमल। प्रभुपाद लिखता है, उन्होंने कभी भी हम दर्शन करने के लिए जाएगा तो मंदिर में कैसे हमारा दृष्टि होना चाहिए? पहला पद कमल से लेकर ऊंचा ऊपर तक पदमुकल। So one has to look at the lotus feet and they have to go up to the lotus face. So in Tamil we say that padara, no, what is that? No, siras. So from the lotus feet up to the head, we have to have the darshan. So this is also very important. So always the lotus feet is given so much of importance because of the simple reason all the acharyas who are doing it, we are doing the anucharan. उनका पद कमल में हम जाके क्या करना चाहिए? So we should always follow the footsteps of acharyas and always look for the service at the lotus feet of the Lord. Clear? So यही गोपियां भी हमको दिखाता है. So when we look at the best devotional service, always we take up गोपियों के बारे में लिखते हैं. चैतन्य महाप्रभु भी क्या बताता है? सबसे उत्तम प्रेम क्या है? गोपियों का जो प्रेम है. So they have got such a wonderful devotion. उनको कभी भी अपना घर का, पति का, बच्चों का चिंतन नहीं होता है. इसलिए वो सब कुछ छोड़ के आए. जैसे भगवान ने बंसी बजाया, बंसी बजाने के बाद उसमें से इतना मधुर आवाज निकला है. इसके बारे में श्री वल्लभाचार्य ने क्या बताया? आधारम मधुरम नयनम मधुरम. ऐसी हर एक तो भगवान का संबंध है, हर कुछ तो क्या होता है? मधुरम मधुरम होता है. यहाँ भगवान का पद कमल में जो निकलता है वो भी मधुर है. सो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? भगवान का पद कमल को प्राप्त करने के लिए इच्छा रखना चाहिए. दैट्स द टॉप मोस्ट. इसलिए हम लोग कभी भी मंदिर जाएगा होते क्या करना है? पद कमल का दर्शन. वी ऑलवेज से पाद सेवन. पाद सेवन मतलब पाद सेवन बहुत जरूरी. क्लियर? हरे कृष्ण. श्याम. अन्नः अन्नः प्रसीद वृजिनार्दने गिरिमूलं प्राप्ता विसृज्य वसति त्वादुपासनाशाः तत्सुन्दरस्मितनिरीक्षण तीव्रकाम तत्तात्मना पुरुषभूषण देहि दास्यम्. Synonyms translation. Tat, therefore, nah, to us, Prasida, please show your mercy. Regina, of all distress. Ardana, O vanquisher, say your Angri Mula feet. Prapta, we have approached. Vishrujya, renouncing. Vasati, our home. Vat Upasana, the worship of you. Asha, hoping for. Tvat, your Sundara, beautiful. Smita, smiling. Nirikshana, because of the glances. Tibra, intense. Kama, by the lust. Tatta, burned. Atmanam, whose hearts. Purusha, of all men. Bhushana, O ornament. Dehi, please grant. Dasyam, servitude. Translation. Therefore, O vanquisher of all distress, please show us mercy. To approach your lotus feet, we abandoned our families and homes, and we have no desire other than to serve you. Our hearts are burning with intense desires generated by your beautiful smiling glances. O Juno among men, please make us your servants. When Shri Krishna was born, the sage Garga predicted that he would manifest all the opulences of the Supreme Lord Narayana. The gopis now appeal to the Lord to fulfill this prediction by being merciful and granting them direct service, just as Lord Narayana awards direct service to his loving devotees. The gopis emphasize that they did not give up their families and homes with the hope of securing a higher pleasure from Krishna. They are simply begging for service, revealing their pure-hearted devotion
The gopis think, if in the course of your pursuing your happiness, we somehow or other become happy by seeing your face, what is the harm in that? Srila Vishwanath Chakravarti comments on the words Purusha Bhushana, a jewel among men. The Thakur states that the gopis meant to say, O jewel of all males, please decorate our golden bodies with the dark blue gems of your lips. Srila, you can comment on this. So हरे कृष्ण, एक से बढ़कर एक जो श्लोक है उसका अर्थ है जो प्रेम दिखा रही है गोपियां, इससे हम सबको सीखने के लिए बहुत है। पहले बात कर रहे हैं कि हे भगवान, पिछले श्लोक में देखा जाए तो बोल रहे हैं कि आप हमें वापस भेज रहे हैं, परंतु आप कौन है? आप ओ वैंक्विशर ऑफ ऑल डिस्ट्रेस। सो बोलते हैं वृजिना अर्दना, जो कोई भी कठिनाइयों को निकालने वाले हैं आप हमें ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप थोड़ा हमें आपके आशीर्वाद दीजिएगा, प्रसाद दीजिएगा, प्रसीद। और फिर बोल रहे हैं कि आपके जो पद कमल को पहुंचने के लिए हम क्या किए हैं? हम बहुत से त्याग किए हैं। हमारे पूरे जो बंधन है हमारे परिवारों के साथ, बंधन हमारे परिवार का, हमारे घर वो सब छोड़ के आते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं बर्न द ब्रिजेस। वापस नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनके परिवार के जो बंधन है और घर के जो बंधन है, ये सब त्याग करके, पूरा त्याग करके भगवान के पास आए हैं। भगवान बोले हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। कभी कभी हम लोग आधा भक्ति करते हैं, पूरे त्याग नहीं करते। परंतु जो श्रील प्रभुपाद जी के अनुयायी थे, जो अपने पूरे परिवार, जो कुछ भी था उनका, जो कुछ भी संपत्ति था, वो सब श्रील प्रभुपाद जी को त्याग देते हुए पूरे उनकी ही जीवन को भी श्रील प्रभुपाद जी के सेवा में लगाने के लिए त्याग। हम सब बात करते हैं, ये करते हैं, पर पूरा हमारा संपत्ति सब त्याग नहीं करते हैं भगवान। तो श्रील प्रभुपाद जी के जो अनुयायी थे, जो पहले वो सब ज्वाइन किए थे, उनका जो कुछ भी है काम सब छोड़ दिए थे। उनके परिवार में जो कुछ भी उनका पैसा आया था, जो इनहेरिटेंस संपत्ति था, वो भी श्रील प्रभुपाद जी को दिए। ऐसे पूरा सब कुछ समर्पण किए भगवान। ये सब लोग श्रील प्रभुपाद जी को दिए हैं। ऐसे गोपी बोल रही है कि हमारे जो कुछ भी संपत्ति है, हमारे जो कुछ भी बंधन है, परिवार का, घर का, ये सब छोड़ते हुए वापस जाके हमें डांट मिलने वाला है। हम ये सब त्याग करते हुए आपके पास आते हैं और आप हमें वापस भेजने का सोच भी रहे हैं। वे कैसे हो सकता है? आप तो कठिनाई को निकालने वाले हैं। हमको प्रसाद दीजिएगा कि आपके जो पद कमल का दर्शन और स्पर्श हमें मिलेगा। हमें कुछ और जरूरत नहीं है, कुछ और कामना नहीं है हमें, परंतु आपका सेवा ही करना है। और इधर ये भी बोलते हैं कि हमारे हृदय में इतने से दहन है कि आपसे मिलने के लिए, और आपके बस कृपा कटाक्ष, आपके जो स्माइलमान अभिध्याय, ये स्माइलिंग फेस, जो भगवान के जो हंसमुख, जो बोलते हैं मुस्कुराहट को देखने के लिए ही इच्छा है हमें, और कुछ देखने का इच्छा नहीं है। और इनको बोल रहे हैं कि जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं पुरुष भूषण, पुरुषोत्तमा सुने हैं। पुरुषोत्तमा माने सभी पुरुषों से उत्तम है, परंतु यहाँ के शब्द कहा गया है पुरुष भूषण। ये पुरुष भूषण सभी पुरुषों के भी भूषण है। और आप क्या है? आप ही पुरुष है और हम सब दासी बनने के लिए तैयार है। आपके लिए देही दास्यम, हमें आपके दासी बनाइए। आप ही पुरुष है। और ये बस गोपियों का ही प्रार्थना नहीं हो सकती है, हम सबका भी प्रार्थना ही होना है। हम पुरुष है या स्त्री है, हम सबका यही चिंतन होना है कि हमको भगवान के दास बनना है। और किसके दास? पुरुष भूषण। बहुत अच्छे प्रयोग है, क्योंकि भगवान को पुरुष भूषण कहा गया है। इधर के जो तात्पर्य में वही बोल रहे हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण का पैदा हुआ और गर्गमुनि आके उनके नाम रख रहे हैं, तब गर्गमुनि
जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखते हुए बताते हैं कि ये जो बच्चा है, ये जो बालक है, ये भगवान नारायण, स्वयं नारायण के सभी जो ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। सभी ऐश्वर्य, भगवान नारायण के सभी ऐश्वर्य ये बालक में है। अभी गोपी बोल रहे हैं कि अभी ओ भगवान, ये जो गर्गमुनि का जो उपदेश था, गर्गमुनि का जो प्रेडिक्शंस था, उसको आप हमें ये भाव देना कि आप सबसे ऐश्वर्यशाली हैं और हम आपके दासी बनने के लिए तैयार हैं। जैसे बोलते हैं गोपी भर्तुर पर कमलो दास दासानुदास। ये गोपी वही बोल रहे हैं कि हम हमारे परिवार और घर ये सब छोड़ के आए हैं कि आप कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रेम भावना में लीन होने के लिए। परंतु वो अभी यही दान मांग रहे हैं, दास्यामी, हमें यही देना, भिक्षा मांग रहे हैं कि हमें आपके दासी बनाइएगा। और ये उनके जो सही हृदय के जो प्रेम के बारे में बताती है। यहाँ ऐसे भी बोला गया है कि गोपी बोल रहे हैं, और जब in the course of your happiness, that's very important. Become happy, by seeing your face. What is it? Bada. In the course of your pursuing your happiness, आप तो खुशी हैं, आप तो अभी हर वक्त हंसमुख हैं, आपके ये हंसमुख चेहरा को देखते हुए हमें सुख मिल रही है, तो आपको क्या बाधा हुआ? आप तो कुछ नहीं दे रहे हैं, बस आपके हंसमुख चेहरा को देखते हुए हम सुख पा रहे हैं, इसमें आपको क्या बाधा होती है? आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं हमको ये बात? Want to add something to it? So, oh jewel of the males, please decorate our golden bodies with the dark blue gems of your limbs. So Purusha Bhushana, विश्वनाथ चक्रवर्ती बोल रहे हैं कि गोपी बोल रहे हैं कि आपके जो ये नील रंग के जो शरीर के जो हमारे जो क्या बोलते हैं आभूषण, no, our golden bodies, स्वर्ण शरीर, गौरंग शरीर जो है हमारे, उसको आपके जो ये नील रंग के, नील मणि जैसे भूषण है आपके आपके हाथों, उससे क्यों नहीं आप आलिंगन कीजिएगा? Why don't you also, decorate our golden bodies with the dark gems of your limbs? आपके हाथों से क्यों नहीं हमारे आलिंगन करते? हरे कृष्ण। Next shloka. Hare Krishna. Verse number 39. Vikshyalaka vrutamukham tava kundala shri gandhastala shudham hasitavalokam dattabayam shabhujadhanda yugam vilokya vakshashriyayka ramanam Bhavamadasyah. Vikshya, seeing, alaka, by your hair, avruta, covered, mukham, face, tava, your kundala, of your earrings, shri, with the beauty, gandhastala, having the cheeks, adhara, of your lips, sudham, and the nectar, hasita, smiling, avalokam, with glances, Datta, bestowing, Abhayam, fearlessness, Char, and Bhujadanda, of your mighty arms. Yugam, the pair, Vilokya, glancing upon, Pakshaha, your chest. Shri, the goddess of fortune. Eka, the only. Ramanam, source of pleasure. Char, and Bhavama, we must become. Dasyaha, your maidservants. 1 minute. Kamalamaki Mataji, translation. Hare Krishna Prabhu. Translation by disciples of Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Seeing your face encircled by curling locks of hair, your cheeks beautified by earrings, your lips full of nectar, and your smiling glance, and also seeing your two
imposing arms, which take away our fear, and your chest, which is the only source of pleasure for the goddess of fortune. We must become your maidservants. Continue, Prabhu. 1 minute. Huh? Gopikita Mataji, purport. Hare Krishna Prabhuji, Dandat Pranam. Okay, purport. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur envisions the gopis dealing with Krishna as follows. Krishna says, "You want to become my servants, so do I have to buy you with some payment, or are you giving yourselves freely?" The gopis replied, "Since the beginning of our youthful womanhood, you have been purchasing us with a payment millions and millions of times more than enough. That payment is your gem-like smiling glance, which constitutes a great treasure we have never heard about or seen anywhere else. When you put your golden turban on your head, your maidservant will act as your pulling up the turban bit by bit until it is in just the right position. And even while you shake a chastising finger at her, trying hard to prohibit her, she will put her hand beneath your turban and take the opportunity to glance at your face. Thus, we, your maidservants, will relish with our eyes your abundant sweetness." Krishna says, "Your husbands will not tolerate this behavior of ours. They will complain bitterly to King Kamsa, thus producing a fearful situation for me and for you as well." The gopis say, "But Krishna, your two mighty arms make us fearless, just as they did when you held up the Govardhana hill to protect us from the pride of Mahendra. Those arms will certainly kill the beast Kamsa. But being a religious person, I cannot make others' wife my maidservants. Oh dear crest jewel of religious personalities, you may say that you refuse to make the cowherd wives your maidservants, but by force you have already taken Lakshmi, the wife of Narayana, from Vaikuntha and are carrying her around your chest. Out of shame, she has assumed the form of a golden lion on your chest, and she takes her only pleasure there. Besides, within all these 14 worlds, and even above these worlds, in Vaikuntha Loka, beyond this universe, you never rejected any beautiful woman, no matter who she is or whom she belongs to. We know this quite well." Hare Krishna. Shivala. It's very interesting. हरे कृष्णा जब जो आचार्य तात्पर्य लिखते हैं उसके कमेंट्री लिखते हैं, इसमें वर्णन है कि कैसे जैसे प्रश्नोत्तर के रूप में कैसे हमें ये जो लीला को बता रहे हैं। ये श्लोक तो सीधा साधा है, लगता है कि हाँ हे भगवान, जैसे हम भगवान के मुख देख रहे हैं, भगवान के जो हैर को देख रहे हैं, भगवान के कुंडल को देख रहे हैं, भगवान को अधर को देख रहे हैं, ये और भगवान के स्मायमान मुखा जो मुख को देख रहे हैं, परंतु इसका जो अर्थ, ये जो तात्पर्य से हमें समझ आ रहा है कि हे भगवान, आप ये कर रहे थे और वो कर रहे थे और ये सब में ऐसे किए, आपको तो शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण भी बोल रहे हैं मैं कैसे कर सकता हूँ, बोल रहे हैं तो आपको डरने का क्या है, कम से आप तो गोवर्धन को भी उठाए हैं, इसलिए आपकी जो ताकत है आपने कि आपके भुजाओं में इतनी ताकत है तो कि आप कंस को मार सकते हैं, इसीलिए वो बोल रहे हैं। और भगवान बोल रहे हैं कि जो आपके जो पतियां ये देख नहीं पाएंगे, कंसा को जाके कंप्लेन करेंगे, फिर कंसा हम सब पर अटैक करेंगे। तो बोल रहे हैं अटैक करेंगे तो क्या है, आपके भुजाओं में इतना शक्ति है, आप तो गोवर्धन उठाए हैं, इसलिए जो कंस भी आए तो जरूर वो कंस को मारने का शक्ति आप में है। और आप बट भगवान बोल रहे मैं कैसे, मैं भी श्रद्धालु हूँ, मैं भी जो भगवत विधि को पालन करता हूँ, दूसरे
जो पतियों के पत्नियों के साथ मैं कैसे व्यवहार कर सकता हूँ, कि जैसे जब एक बात हो रही है कि जो मेड सर्वेंट्स इतने जो डेडिकेशन से काम करें, कि जैसे कोई भगवान के लिए एक टर्बन लगा रहे हैं, तो भगवान जो भी काम कर रहे हैं टर्बन को ठीक से फिक्स कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, हाथ को अंदर जोड़ते हुए उसको ठीक से फिट होता है नहीं है, भगवान पूछ नहीं रहे पर खुद सेवा में लगे हैं, और यहाँ बोल रहे हैं कि मैं कैसे आपसे सेवा मांगू। हाँ, पर इधर बोल रहे हैं कि हाँ हाँ आप तो सभी जो ज्वेल, जैसे पिछले श्लोक में हम पढ़े थे कि पुरुष भूषण, आप भी इधर धर्म के भूषण हैं। आप बस खाली पुरुष भूषण भी नहीं है, सभी धर्मों के भी भूषण आप ही हैं, सभी धर्मों को पालन करने वाले आप ही हैं, और इसीलिए आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हम गोपियों को आप दासी बनाने के लिए आप में तो कुछ शंका नहीं होना है। और आप तो क्या किए हैं, फोर्स से बल रूपी लक्ष्मी जो नारायण की पत्नी है, लक्ष्मी को आप इतने आकर्षित कर लिए हैं कि लक्ष्मी आपके ही चेस्ट में नित्य निवास कर रही है, श्रीनिवास, वो निवास कर रही है हर वक्त। क्या बोलते हैं, श्रीवत्स कौस्तुभ, Galasho भी कौस्तुभ। What is that? The line of Lakshmi in the heart. What is that? श्रीवत्स लक्ष्मी। That's a चिन्ह। हाँ, श्रीवत्स को जो चिन्ह है आपके साथ ही है, लक्ष्मी आपके हृदय में ही है। नारायण को छोड़ते हुए लक्ष्मी आपके सेवा में लगी है। हम तो दासी बनने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, और वैसे तो सभी पूरे 14 भुवन समझती है, और सबको मालूम है कि आप कोई भी जो सुंदर स्त्री है उसको सेवा के लिए पूछ रही है, तो आपको कभी ना नहीं बता सकती है। तो इसके बारे में पूरा जो 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 आचार्य के जो तात्पर्य को कैसे एक वार्तालाप के रूप में कैसे ला रहे हैं, बहुत बार ऐसे भगवत गीता का भी ऐसे है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का सुने, भक्त्यालोका बोल के एक है उनका, उसमें वो भी नहीं, गीतामृत बोलते हैं उसको। वो गीतामृत में भी जो अर्जुन और कृष्ण के जो वार्तालाप भगवत गीता में होती है, उसको और हमें उठाते हुए समझाने के लिए उसमें वार्तालाप और थोड़ा प्रश्न उत्तर ऐड करते हैं, जैसे भगवान या भक्तों के और भगवान के बीच में वार्तालाप हो रही है। और ऐसे देखा जाएगा तो ये जो तात्पर्य में वैसे आचार्य भगवान के और गोपियों के और थोड़ा प्रश्नोत्तर से ये तात्पर्य और ब्यूटीफुली ला रहे हैं हमारे सामने। हरे कृष्णा। ये तात्पर्य में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने हमेशा जितना भी बताता है, वो जो अनुभव किया है वो तात्पर्य में डाल देता है। प्रभुपाद भी जितना तात्पर्य लिखते हैं उसमें क्या कर रहे हैं, हमेशा उनको अनुभव होता है ना, ऐसे पढ़ते हुए, क्योंकि आचार्य लोग को इतना विशेष अनुभव होता है, वो अनुभव को हम हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। शेयर करते हुए हमको आनंद कर सकते हैं। जैसे पढ़ते हुए क्या होता है, हमको हंसता आता है। क्या कारण है, उन्होंने ऐसे अनुभव करके लिखा है। अभी देखिए, इसमें सबसे पहला कृष्ण भगवान ने ये गोपियों को क्या पूछा होगा, ऐसे बोल रहे, राइट, यू वांट टू बिकम माय सर्वेंट्स, आप तो हमारा दासी बनने के लिए तैयार है, मगर ऐसी होगा तो मैं आपको क्या भाव दूंगा, भाव के साथ आपको लूंगा, ऐसे तो मुफ्त में नहीं लेंगे, राइट। इसके बारे में हम लोग को भाव का शब्द आएगा तो तुरंत याद आता है, किसका कथा आज सुबह भी देखा था, पिंगला। पिंगला क्या कहते हैं, सुहृत प्रेष्ठतमो नाथ आत्मा छायाम शरीरिनाम। वो श्लोक निकालो प्रभु। पिंगला 11:8-31। हरे कृष्णा। वहां वो क्या कहती है, जैसी रमा देवी आपके साथ रमण करती है, वैसी आपको मैंने भक्ति का जो है वही भाव है, वो देख के आपको खरीदूंगा, खरीद कर क्या करेगा, आगे आपके साथ आनंद करूंगा। तो वो निकाल दिया 35 11:8-35। प्रभु अनुवाद पढ़िए उस श्लोक का। ट्रांसलेशन ये पिंगला चरित्र आता है श्रीमद् भागवतम में 11वां स्कंद में 8वां अध्याय में, श्लोका संख्या 35।
The Supreme Personality of Godhead is absolutely the most dear one for all living beings because he is everyone's well-wisher and Lord. He is the Supreme Soul situated in everyone's heart. Therefore, I will now pay the price of complete surrender, and thus purchasing the Lord, I will enjoy with him just like Lakshmi Devi. Suhrat Preshtatamo Nata Atma Chayam Sharirina Tam Vikriyat Manaivam Vaivaham Rame Nanena Yatharama. ऐसे हमको अनुभव कर सकते हैं हर जगह पे ये भक्ति और शरणागति का भाव का मतलब। वहां क्या कहते हैं उन्होंने, मैं पूरा ये भाव कैसे दूंगा, शरणागति करके वही भाव है, आपको खरीदूंगा। खरीदूंगा बोले भगवान कैसे खरीद सकते हैं? यहाँ भगवान क्या कहते हैं, आपको कैसे खरीद कर सकते हैं, राइट? आप तो दूसरों को पत्नी है, मैं कैसे करूंगा? अगर ये करेगा तो क्या होगा, उन्होंने हमेशा सहन करना मुश्किल हो जाता है, वो सहन नहीं करेगा, दूसरों को पत्नी को कर नहीं सकते। इसलिए यहाँ ये भी बताता है। आगे लास्ट में जो बताता है बहुत सुंदर वर्णन है, गोपियों ने क्या कहता है, बट कृष्णा योर माइटी आर्म्स मेक अस फियरलेस, अभय प्रदान करने वाले, क्योंकि उनका भुजाएं है इतना एकदम स्ट्रांग है, उससे उन्होंने क्या कर रहा है, हर एक को अभय प्रदान करने वाला है। सो कभी भी आपको हमको सहायता चाहिए तो आपसे ही सहायता मांग रहे। जैसे हमको इतना मुश्किल हो गया, जैसे इंद्र ने इतना बारिश भेजा था, उसी समय आप गोवर्धन पर्वत को उठा के हमको पूरी तरफ से सुरक्षा दे दिया। इसी समय पे भी आपको यही करना है, हम आपके साथ हमेशा के लिए रहने के लिए आप हमेशा स्वीकार करना चाहिए। यहाँ भगवान ये भी बताता है, शास्त्र में लिखा है दूसरों को पत्नी को हम दासी नहीं बना सकते। भगवान उसको भेजने के लिए बाहर कोशिश कर रहे हैं, मगर ये गोपियां तो छोड़ती नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतना चाल किया। पिछला जितना भी श्लोक आप देखेंगे तो आनंद होगा। भगवान अनेक कारण बताते हैं, यहाँ ये समय नहीं रुक सकता है, ये तो अंधेर है, इतना बड़ा बड़ा शहर है, सब कुछ है, आपको डर लगेगा, भाग जाओ, ऐसे कुछ। मगर वो क्या कहते हैं, नहीं इधर से नहीं निकलूंगा। वो क्या कहती है, मैं सब कुछ त्याग करके आया, वापस कैसे जा सकते? वो लोग हमारे ऊपर क्रोध आएगा, वो बात अलग है, मगर वहां जाने के लिए हमको इच्छा नहीं सबसे पहले। इसलिए आपको और दूसरा कुछ मार्ग ही नहीं है हमको स्वीकार करने के बगैर। मतलब इनका दृढ़ता देखना चाहिए। देखिए इतना ये आचार्य है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्यों ऐसे लिखते हैं, उनका मन में ऐसे होगा, इनका मन ऐसे होगा बोलेगा तो इनका अंदर जो हृदय के अंदर है वो यहाँ हम देख सकते हैं। क्योंकि आचार्य लोग के ये हो सकते हैं, हमको ऐसे अनुवाद पड़ेगा बस भूल जाएगा, आगे कुछ भी मालूम नहीं होगा। तात्पर्य की वजह से उनका अंदर हृदय के अंदर, गोपियों का हृदय के अंदर क्या है और कृष्ण का हृदय के अंदर क्या है, ये स्पष्ट मालूम हो जाता है। ये देखने के बाद उसमें क्या होता है, भगवान का हर एक अंग का बारे में एक एक करके बता दीजिए। आपको हृदय के बारे में बताता है और आपका ये मुस्कुराते हुए हमको आकर्षण करें। ऐसी परिस्थिति में कैसी छोड़ के जाऊंगा। इसमें और एक विषय भी बताता है, जैसे उनको जो टर्बन है उसको हमेशा थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करने के लिए कोशिश करती है। असल में वो करने के लिए जरूरत ही नहीं है, वो ठीक से पहना हुआ है, मगर क्या करती है, ये कुछ कारण चाहिए उनको मुखमंडल को देख के आनंद। ऐसे भी हम लोग बाला लीला में देख सकते हैं, जैसे भगवान को मैया ने सुबह सुबह क्या करती है, यशोदा अच्छी तरह से सजावट करके रखती है। कोई कोई आके यशोदा मैया हमारा घर पे राई नहीं है, थोड़ा राई दे दो, राई है ही नहीं है। ऐसे बहुत कुछ नाटक करती। नाटक क्या है, भगवान को दर्शन करना, मुखमंडल को, मतलब गोपियों को और दूसरा कुछ काम ही नहीं है, सिर्फ भगवान को हमेशा देखने देखने देखने। देखिए ये भगवान का सुंदर स्वरूप का वर्णन है। ये श्लोक का अंदर देखेगा तो अनेक विषय निकल सकते हैं, क्योंकि हम लोग नारद मुनि का एक श्लोक हमेशा हम लोग बोलते हैं, प्रसादाभिमुखम, उसमें भगवान का वर्णन जितना भी लिखा है हर एक व्यक्ति को, हर एक जीवात्मा को आकर्षण करने का। मगर ये देखने के बाद भी हमको आकर्षण नहीं हुआ तो हम तो क्या कह सकते, तदस्मसारम हृदयम। हरे कृष्णा।
Hare Krishna. Okay. So, लोहे के जैसे हो गया हमारा हृदय, राइट? यही होना चाहिए. भगवान का दर्शन, उससे हमको क्या होना चाहिए? भक्ति आगे बढ़ना है, उनको ऊपर प्रेम बढ़ना चाहिए. यही महत्व है. हरे कृष्णा. I want to add something. Okay. CC Madhya 870. ये जो पिंगला के जो श्लोक में बताते हैं कि भगवान को खरीदने के लिए क्या करना चाहिए, तो हमें पूरा अपने आप को शरणागत होना है भगवान. हम हमारे शरणागत होने से भगवान को खरीद सकते हैं. भगवान को बहुत आसान है खरीदने, और आसानी क्या है? हम पूरा जो भी है पूरा शरणागत हमको देना है. चैतन्य चरितामृत मध्य 870, इसमें एक श्लोक है तो प्रभुपाद जी ऑफन कोट करते हैं. ये श्लोक ऐसे होती है: कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यमेकलम जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते. Pure devotional service in Krishna consciousness cannot be had even by pious activities in hundreds and thousands of lives. जितने भी हम पुनर्जन्म लें और पुण्य काम करें और कृष्ण के भक्ति हमें प्राप्त नहीं होगी, परंतु it can be attained only by paying one price. एक ही मूल्य. इसका एक मूल्य क्या है? खरीदने के लिए कुछ मूल्य है. इसका क्या मूल्य है? क्या मूल्य चुकाना है? That is intense greed. मैं बोल रहे हैं कि वो मूल्य है कि intense greed, लौल्यम जो बोलते हैं उसको. तत्र मूल्यम लौल्यम. लौल्यम माने डिटर्मिनेशन होना है कि और ज्यादा सुने, और ज्यादा सेवा करें, और भगवान के बारे में सुने, काम करते रहें. जहां भी प्रोग्राम है, जितने भी दूर में प्रोग्राम है, आप सब इधर आके अटेंड करें, क्योंकि आप सबके इतना लौल्य है श्रीमद् भागवतम कथा सुनने का. ऐसे जो लौल्य है. Nectar of institution also laulyam cha shadvita shanagati. शरणागति. So यहाँ वही बात है कि the intense greed to obtain, लौल्य जब है वही है मूल्य. वो मूल्य जो लौल्य है, जो मूल्य बन जाता है, वो करेंगे तो if it is available somewhere, one must purchase it without any delay. तुरंत अपिचेत सुधुराचार. जब क्षिप्रम भवति, almost immediately, इसमें कुछ डिले नहीं होना है, ये मूल्य हम चुका सकते हैं, तो बहुत जितने जल्दी हो सके चुकाना है, नहीं तो मार्केट अप एंड डाउन हो जाएगा. खरीदने तुरंत लेना. हरे हरे कृष्ण. श्लोक संख्या 40. कार्त्र्यंग ते कल पदा यत वेणुगीत सम्मोहिताद्य चरितान् चले त्रैलोक्य सौभगम् इदं च निरीक्ष्य रूपं यद्गोविद्विज द्रुम मृगा पुलकान्यभिभ्रन्. माताजी. Synonym, translation, everything. Ka, which, Stri, woman, Anga, dear, Krishna, Te, your, Kala, sweet sounding, Pada, having stanzas, Ayata, drawn out, Venu, of your flute, Gita, by the song, Samohita, completely bewildered, Arya, of civilized people, Charitat, from the proper behavior, Nachalet, does not deviate, Trilokyam, within the three worlds, Trilokya, of all the three worlds, Saubhagam, the cause of auspiciousness, Idam, this, Cha, and Niriksha, seeing, Rupam, the personal beauty, Yat, because of which, Go, the cows, Dvija, birds, Druma, trees, Mrigaha, and deer, Pulakhani, bodily hair standing on end, Abhibran, they bore. Dear Krishna, what woman in all the three worlds wouldn't deviate from religious behavior when bewildered by the sweet, drawn-out melody of your flute? Your beauty makes all the three worlds auspicious. Indeed, even the cows, birds, trees
and deer manifest the ecstatic symptoms of bodily hair standing on end when they see your beautiful form. यहाँ रूप का बारे में इतना महत्व है, क्योंकि हम लोग हमेशा प्रभुपाद का तात्पर्य में लिखते हैं नाम रूप लीला गुण, क्योंकि हर एक जीव तो कुछ कारण की वजह से भूल गया अपना ओरिजिनल संबंध को, मगर ये संबंध को वापस पुनर्स्थापित करने के लिए ये चार चीज में भगवान विशेष कृपा करके शक्ति रखा है। इसलिए हम लोग शिक्षाष्टक में क्या बताता है, युगायितम निमेषेण चक्षुषा शीतम शून्यतम जगत। Oh no, not that one actually. This is not the one. निज सर्व शक्ति ही क्या बताता है उसमें, निज सर्व शक्ति ही शिक्षाष्टक में क्या बताता है, वो नाम के अंदर भगवान ने पूरी शक्ति रखी है। ऐसी यहाँ बहुधा निज सर्व शक्ति, तो यहाँ वही बताता है भगवान अनेक शक्तियों प्रदान किया इसके अंदर, इसलिए रूप का बारे में यहाँ वर्णन दिया हुआ है। क्योंकि हर एक जीव को ये भौतिक जगत में आने के बाद इतना तकलीफ, इतना मुश्किल, हर वक्त कुछ न कुछ उसको थाप तो रहता है ये, मगर ये थाप से निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, भगवान को आश्रय लेना पड़ता है। आश्रय लेने की वजह से हमको क्या होता है, ये भौतिक जगत को पार कर सकते हैं बहुत आसानी से, जैसे ही उसमें शरणागति के बारे में लिखा है। मगर यहाँ गोपियों ने क्या कहती है, ये रूप के अंदर आपने सब कुछ रखा है, ऐसी आपका रूप एक बार देख लिया होगा तो ये भौतिक जगत कुछ भी नहीं है, सब कुछ त्याग करना आसानी हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं यहाँ, डियर कृष्णा व्हाट वुमन, कि तीनों लोगों में कोई भी शास्त्र को अनुसरण करने के लिए तैयारी नहीं होगा जब तक आपका दर्शन मिलने के बाद। क्या कारण है, क्योंकि बाकी जितना भी शास्त्र अनुसरण करने में कुछ भी नहीं है, मगर भगवान प्राप्त हो गया तो सबसे उत्तम वही चीज है। इसलिए भगवान गीता में सर्वधर्मान बोलेगा तो विविध प्रकार का धर्म तो होगा, मगर हर एक धर्म को पालन करेगा तो भगवान को प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए सभी धर्मों को पालन करने के लिए हमको तैयारी करनी चाहिए। क्या होता है, अनुष्ठान बहुत होता है घर पे, राइट, पिताश्री कुछ किया, उनके पिताश्री कुछ किया है, ट्रेडिशन वगैरह बोल बोल के हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर हमको पकड़ के ऐसे बैठा हुआ है, मगर जो मूल्य चीज है वो भूल जाता है। तो यहाँ वही बताता है अपना जो आध्यात्मिक जितना भी हमको करने का है, मगर यही हमारा कर्तव्य ही है, मतलब आगे कुछ करने के लिए है ही नहीं है। देखिए इसमें और एक श्लोक भी आता है याद मुझे, एक मिनट है, त्रैलोक्य, तीनों लोकों में। इसलिए भीष्मदेव ने बताया त्रिभुवन कमनम थमाल वर्ण, वर्ण का वर्ण, वहां रूप का वर्ण में भीष्मदेव बताता है त्रिभुवन कमलम थमाल वर्ण, वो वर्ण कहीं भी नहीं देख सकते त्रिलोकों में। यहाँ वही बता, तीनों लोकों में जितना भी स्त्रियों है, जैसे आपका एक बार दर्शन देख लिया होगा तो वो संतुष्ट हो जाती है, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि इसके अलावा और यहाँ ये भी बताती है आपका मुखमंडल से, आपका ओठों से जो निकलता है जैसी बंसी से वो मधुर वाणी, वो क्या होता है कान के अंदर प्रवेश होते सारी इंद्रियों को भी संतुष्ट करती है। तो ऐसे ही संतुष्ट होने के बाद बाकी विषय तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारे सुमंगल लेने वाला है, तीनों लोगों को सुमंगल लेने वाला क्या है, यही है। इसमें आगे यही बताते हैं इंदित, हाँ, ये मधुर वाणी को सुनकर गाय और पक्षी, वृक्ष और हिरण सब कुछ क्या होता है, एकदम आनंद में मग्न हो जाती है, अपना पुलकांकित होकर उन्होंने अपने आप को भूल भी जाती है। आगे क्या लिखते हैं, एट द एंड व्हेन दे सी योर ब्यूटीफुल फॉर्म, आपका सुंदर स्वरूप। हरे कृष्ण। नेक्स्ट श्लोक, व्यक्तम भवान व्रज भयार्थी हरो अभिजातो देवो यतादि पुरुषः सुरलोक गोप्ता तन्नो निधेहि कर पंकजम आर्त बंधो तप्त स्तनेषु च शिरस्यु च किंकरीणाम, किंकरीणाम, ओके। Vyaktam, obviously, Bhavan,
you, Braja of the people of Braja, Bhaya of the fear, Arti and distress, Haraha as the remover, Abhijataha having taken birth, Devaha, the supreme personality of Godhead, Yata, just as, Adi Purushaha, the primeval Lord, Suraloka of the planets of the demigods, Gupta, the protector, Tat, therefore, Naha of us, Videhi, kindly place, Kara, your hand, Pankajam, lotus-like, Artha of the distressed, Bandhu, O friend, Tapta, burning, Staneshu, on the breasts, Cha, and Sirashu, on the heads, Cha, also, Kinkari Nam of your maid servants. Translation. Clearly, you have taken birth in this world to relieve the fear and distress of the people of Praja. Just as the Supreme Personality of Godhead, the primeval Lord protects the domain of the demigods. Therefore, O friend of the distress, kindly place your lotus hand on your maidservants' heads and burning breasts. Yes, dear. Next shloka. 42. Shri This you have to Shukauva. explain. Okay. Clearly, you have taken birth in this world to relieve the fear and distress of the people of Raja. So Hare Krishna. So अभी वापस यही बात हो रही है कि आप इसलिए अब जन्म वापस अवतरण किए हैं कि ये जो भूमि के पूरे भार को निकालने के लिए और हमारे जो कुछ भी कठिनाई है और जो ब्रजवासियों के जो कुछ भी कठिनाई है ये सब को निकालने के लिए ही आप अवतरण लिए हैं, जैसे नारायण लिए हैं। और जैसे भगवान नारायण भी पूरी देवी देवताओं के जो भार या उनके कठिनाइयों को निवारण करने के लिए पैदा ले रहे हैं, आप भी इसी कारण पैदा लिए हैं। और इसीलिए जो फ्रेंड ऑफ द डिस्ट्रेस जो बोल रहे हैं, अत्र आर्त बंधो, आर्त जो कोई भी जो अर्थ अर्थार्थी आर्त जिनका भी कठिनाई है, जो भगवान भगवत गीता में भी बताते हैं, जिनको भी कुछ कठिनाई है इसलिए उनको बोलते हैं आर्त बंधो। तो ये आर्त जो बंधो, आप क्या करें, आपके जो हाथ को हमारे स्तन पर रखिएगा, जो हमारे जो सिर पर रखिएगा और हमारे हृदय पर रखिएगा, क्योंकि हमें भी ये जो सभी कठिनाई से निवारण प्राप्त होना है। 42 श्री शुक उवाच इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपीः आत्मारामोऽपि हरिरमा। Shri Sukha Uvacha, Sukadeva Goswami said, Iti, in these words, Viklavitam, the despondent expression of Tasam, of them, Shrutva, having heard, Yogeshwareshwaraha, the Lord of all lords of mystic power, Prahasya, laughing, Sadayam, mercifully, Gopi, the gopis, Atma Aramaha, self-satisfied, Api, even though, Arirama, he satisfied. Translation. Sukadeva Goswami said, smiling upon hearing these despondent words from the gopis, Lord Krishna, the supreme master of all masters of mystic yoga, mercifully enjoyed with them, although he is self-satisfied. So, Bhagwan तो इधर बताए हैं कि आत्मा आराम, तो खुद में प्रसन्नता प्राप्त होता है भगवान को, आराम प्राप्त होता है आत्मा खुद अपने आप से। और ये जो भगवान है दूसरों से, वो दूसरों के भावना से उनको कुछ सुख प्राप्त करने का भी जरूरत नहीं है, वो खुद
अपने आत्माराम कहा जाता है, परंतु भगवान भी इधर खुशी हुए हैं। जैसे ये गोपियां के साथ जब वार्तालाप हुआ भगवान को, और भगवान सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, हे भगवान, आप हंसते हुए आप अभी सोच रहे हैं कि गोपियां ऐसे कह रहे हैं, ठीक है मैं क्या करूं। गेट टू द नेक्स्ट। ताभि समेताभिर् उदार चेष्टितः प्रियक्ष सन्नो फुल मुखिभिर् अच्युतः उदारहास द्विज कुंड दिदितैर्हि व्यारोचितैनान्क विवोदुभिर्वृतः Tabihi with them, Semitabihi, who were all joined together, Udara, magnanimous, Cheshtitaha, he whose activities, Priya, affectionate, Yikshana, by his glance, Utpulla, blossoming, Mukhibihi, whose faces, Achyutaha, the infallible Lord, Udara, with broad, Hasa, smiles, Dvija of his teeth, Kunda, jasmine flowers, Deepta, showing the effulgence, Vyajrochata, he appeared splendid. Yenankaha, the moon who bears marks resembling a black deer, Iva, like Udubihi, by stars, Vritaha, surrounded. Translation. Among the assembled gopis, the infallible Lord Krishna appeared just like the moon surrounded by stars. His whose activities are so magnanimous made their faces blossom with their affectionate glances, and his broad smiles revealed the effulgence of his jasmine bud-like teeth. Purport. The word Achyuta here indicates that Lord Krishna did not fail to give pleasure to each and every gopi in the nocturnal assembly. हरे कृष्णा। जैसी गोपियों को सभा में भगवान श्री कृष्ण बीच में है, इसका यहाँ उपमान दिया हुआ है। जैसी आकाश में तारा अनेक है और तारा का बीच में चंद्रमा है, यहाँ ऐसी उपमान दिया हुआ है। इन्होंने जितना भी लीलाएं किया है, इसमें क्या लिखा है वो शब्द हमेशा हमको याद रहना चाहिए, चेष्टितम। उन्होंने जितना भी चेष्टितम किया है, हर एक तो उदारा, उदारा मतलब हर एक हृदय को आनंद प्रदान करने वाला है। क्योंकि भगवान का प्रसन्न मुख सुनकर और देखकर क्या होता है, जितना भी हमारा भगवान को ऊपर आकर्षण है और बढ़ते रहता है। यहाँ ये भी बताता है his affectionate glances and his broad smiles revealed the effulgence of the jasmine bud like teeth. यहाँ उदाहरण दिया मोगरा का, जो नहीं खुला हुआ वाला है ना, वो वाला को बता रहा है। मोगरा का जो बड, उसके जैसे उनका दांत है, दांत ऐसी सुंदर दिखता है। देखिए ऐसी वर्णन कोई देने वाले नहीं, आचार्य लोग उन्होंने इतना विशेष पूर्वक भगवान का हर एक अंग को, अंग बोलता नहीं हम लोग, क्या बोलता है, दिव्य अंग बोलता है। तो यहाँ इतना उसमें से निकलता है, वो तेजस इतना बहुत सुंदर है। ये तात्पर्य में अच्युता बोलेगा तो भगवान कोई भी समय पे फैलता नहीं, he is always perfect, he always does it। एंड यहाँ ये भी बताते जितना भी गोपी थे हर एक को तो आनंद प्रदान करते रहते थे, क्योंकि वो काय के लिए आया, अपना कुटुंब को छोड़ के, अपना पति बच्चों को छोड़ के भगवान के साथ आनंद उठाने के। ये आनंद को क्या कहते हैं हम लोग, परमानंद कहते हैं, ये बोलना नहीं चाहिए। क्योंकि बाकी जगह पे हम लोग आनंद प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का संबंध में क्या होता है, हमेशा प्रॉपर यही शब्द उपयोग कर, ब्लिसफुल। ब्लिसफुल मतलब क्या, परमानंद। परा मतलब सबसे उत्तम आनंद है, इससे बढ़कर और आनंद है ही नहीं है। मगर कहाँ प्राप्त होता है, वो परमधाम, वहां जाएगा तो प्राप्त होता है, ये भौतिक जगत में नहीं होता, ये भी मालूम है। हरे कृष्णा। गीता, यू रीडिंग द श्लोका नेक्स्ट वन। हाँ। उपगीयमान उद्गयन् वनिता शतयूतपाः मालां बिभ्रत् वैजयन्ती यचरन् वन्दयन् वनम्।
Upageya translation. Sorry, one by one. Upageya Manaha, being sung about. Udgayan, singing loudly himself. Vanita, of woman. Shata, hundreds. Yutapaha, the commander. Mala, the garland. Vibrat, wearing. Vaijayanti, known as Vaijayanti, which consists of flowers of 5 different colors. Vyacharan, moving about. Mandaya, beautifying. Vanam, the forest. As the gopis sang his praises, the leader of hundreds of men sang loudly in reply. He moved among them, wearing his Vaijayanti garland, beautifying the Vrindavana forest. Purport. According to Srila Jiva Goswami, Lord Krishna sang many wonderful melodious and features, and the gopis accompanied him. Following his lead, Krishna's singing on this occasion is described in the Sri Vishnu Purana, Krishna Sharat Chandra Masam Kaumundi Kaumudim. Mudakara Jahau Gopi Janastu Ekam Krishna Nama Punah Punaha. Krishna sang the glories of the autumn moon, the moonshine, and the lotus-filled river, while the gopis simply sang his name repeatedly. Yes, Srila. नद्याः पुलिनमाविश्य गोपिभिर्हिमवाकुलम् दुष्टं तत्तरलानन्दि कुमुदामोदवायुना बाहु प्रसार परिरम्भ करालकोरु नीवीतनालभन नर्मनकाग्रपातैः श्वेल्यावलोकहस्तैर्व्रजसुन्दरीणाम् उत्तम्बयन् रतिपतिं रमयां चकार. Nadyah of the river, Pulinam, the bank, Avishya, entering upon, Gopivihi, together with the gopis, Hima, cool, Valukam, by its sand, Jushtam, served, Tat, of it, Tarala, by the waves, Anandi, made joyful, Kumuda, of the lotuses, Amoda, carrying the fragrance, Vayuna, by the wind, Bahu, of his arms, Prasara, with the throwing, Pariramba, with embraces, Kara, of their hands, Alaka, hair, Uru, thighs, Nivi, belts, Sthana, and breasts, Alabhana, with the touching, Narma, in sport, Nakha, of fingernails, Agrapatehi, with the striking, Shvelya, with playful conversation, Avaloka, glancing, Hasitaihi, and laughter, Rajasundarinam, for the beautiful young girls of Raja, Uttambayan, inciting, Ratipatim, Cupid, Ramayam Chakara, he took pleasure. 1 minute. लता अस्वानी माता जी अनुवाद पढ़िए. हरे कृष्णा. ओके. लता अस्वानी माता जी नहीं है. ओके. जयशंकर प्रभु. Hare Krishna, Prabhuji, Dandat Pranam. हाँ पढ़िए. Shri Krishna went with the gopis. Shri Krishna went with the gopis to the bank of the Yamuna, where the sand was cooling and the wind, enlivened by the river's waves, bore the fragrance of lotuses. There Krishna threw his arms around the gopis and embraced them. He aroused Cupid in the beautiful young ladies of Braja by touching their hands, hair, thighs, belts, and breasts, by playfully scratching them with his fingernails, and also by joking with them, glancing at them, and laughing with them. In this way, the Lord enjoyed his pastimes. Hare Krishna, Dandat Pranam Prabhuji. हरे कृष्णा. यहाँ जैसी गोपियों ने इच्छा किया है उनको संतुष्ट के लिए भगवान बहुत आनंद प्रदान किया है. श्लोका संख्या 47. एवं भगवतः कृष्ण लब्ध माना महात्मनः आत्मानं मेनिरे स्त्रीणां
मानिन्यो हि अधिकं भुवि. Okay. Can I request Sachi Mother, Nirmala Vrindavaneshwari? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, पढ़िए। एवं इस प्रकार से भगवतः भगवान कृष्णात कृष्ण से लब्ध प्राप्त हुई माना विशेष आदर महाआत्मना परमात्मा से आत्मा नाम अपने आप को में नीरे माना स्त्री नामा स्त्री। क्या हुआ? वाईफाई कट हो गया। मधुकर प्रभु, जय श्री आप प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, पढ़ूं? हाँ, पढ़िए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से ऐसा विशेष आदर पाकर गोपियां अपने पर गर्वित हो उठी और उनमें से हर एक ने अपने को पृथ्वी की सर्वश्रेष्ठ स्त्री समझा। तात्पर्य, गोपियां इसलिए गर्वित थीं क्योंकि उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रेमी के रूप में प्राप्त हो चुका था। एक तरह से उन्हें कृष्ण पर गर्व था। साथ ही गोपियों का यह गर्व एक बहाना था जो कृष्ण की लीला शक्ति द्वारा उत्पन्न किया गया था, जिससे वे विरह के द्वारा उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट कर सके। इस संबंध में शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से उद्धरण दिया है। न विना विप्लम्बेन संभोग पुष्टि मश्नुते अश्नुते। विरह का अनुभव किए बिना प्रत्यक्ष संपर्क का पूरी तरह भोग नहीं हो पाता। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू। सो हरे कृष्णा। जरूर हम कुछ बहुत अच्छे पाते हैं तो गर्व तो होना है। ये तो भक्ति भाव में गोपियां गर्व से सोच रहे हैं कि ये भगवान के सानिध्य प्राप्त हुआ है, भगवान के साथ जो नदी में नहाने के लिए और भगवान के स्पर्श पाने के लिए जरूर वो तो गर्व होगी। परंतु ये गर्व होना भी एक लीला के कारण है, क्योंकि एक गर्व के कारण भगवान श्री कृष्ण बाद में उनको भी छोड़ के चले जाते हैं कि वो आपके बहुत गर्व है। परंतु ये बात है कि ये जो भगवान श्री कृष्ण के स्पेशल अटेंशन जो मिलती है, कृपा कटाक्ष मिलती है, बस उनके पहले सोच रहे थे कि आपके हसमुख चेहरा को देखते हुए हम खुशी होते हैं, परंतु इनके आशीर्वाद ऐसा मिला कि भगवान उनके नील कमलों के साथ उनको आलिंगन किए और भगवान उनको आलिंगन करते हुए नदी में नहाने के लिए लेके जा रहे हैं। ये सब तो जब उनको लगा कि भगवान हमें इतने आशीर्वाद दिए हैं, थोड़ा तो जरूर गर्व उन सब में हुआ। और ये नहीं कि बस एक ही का हुआ है, एक ही भगवान कितने गोपियों को आलिंगन करते चल सकते हैं, परंतु हर एक गोपी के ये जो गर्व था, इसलिए भगवान इसे रास क्रीड़ा के समय में ही नहीं है, यहाँ नदी के अंदर जब जाते हैं तभी भी ये हमको समझना है कि भगवान इतने रूप धारण किए हैं कि सभी गोपियां को भगवान आलिंगन करते हुए नदी के अंदर चल रहे हैं। और भगवान और ये सब सोच रहे हैं कि मैं ही सबसे बेस्ट हूं। हमें तो जरूर जो भक्तों के लिए ऐसे भावना होना है कि मैं ही सही पात्र हूं भगवान आपके आशीर्वाद की। भक्तों के लिए हमको सोचना है कि यही हमारा आपके करुणा के लिए मैं सही पात्र हूं। हे भगवान, मैं जब आपसे प्रार्थना कर रहा हूं सबसे दीन नहीं, और आपके करुणा मेरे पास पहले आना है। जैसे बच्चे एक माँ बाप के हैं और वो सोचते हैं कि मुझे थोड़ा और करुणा चाहिए, तो और ज्यादा आवाज करेंगे कि माँ बाप को आकर्षित करने के लिए। क्लास में भी ऐसे कोई एक बालक हो सकता है कि अटेंशन पाने का सोच रहा है, कि वो सोचेगा हो टीचर का अटेंशन मुझ पे होना है, और थोड़ा एक्स्ट्रा बात करेगा, नहीं तो और थोड़ा, नहीं तो किसी एक लड़की को देखता है, वो लड़की को आकर्षित करने के लिए ये थोड़ा और थोड़ा स्पेशल एक्शन सब थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ाएगा। ऐसे हम जैसे भक्त हैं और हमको जैसे
जब आराम से हम सोच रहे हैं पर पूरा कठिनाई है, जैसे हम दूसरे श्लोक में भी पढ़े, यत्र मूल्यम तत्र मूल्यम लौल्यम, जितने भी ज्यादा लौल्य हो उसके अनुसार भगवान हमारे पास आएंगे। और यही बात है, हा? कि ये गोपियां सब सोच रहे हैं कि मैं ही सबसे ज्यादा है, परंतु हमारे भावना ऐसा होना है जो भक्तों के कि मैं ही सबसे दीन हूं। इन ह्यूमिलिटी हमको सोचना है कि हे भगवान, मेरे लिए जो आशीर्वाद जरूरत है। ये जो लास्ट लाइन है जिसमें बताए हैं कि ये जो विप्रलंब सेवा जो है भगवान के दूर में, इन सेपरेशन, ये सेवा, ये भाव जब है, तभी जब कोई हमारे आमने सामने है, वो उसका प्रेम हम तभी समझ सकते हैं जब ये विप्रलंब का प्रेम समझ सकते हैं। ये विप्रलंब के प्रेम नहीं है हर वक्त कोई हमारे पास है कि हम ऐसे ही सोचते हैं कि सर्वसाधारण है, ये तो मेरे साथ पीछे पीछे आता है, हर वक्त आता है मेरे साथ में। पर जब कभी कहीं बाहर चले जाता है और फिर हमको समझदारी होती है, ठीक है ये हमारे पास नहीं है तो हमारे लिए इतना कठिनाई है, हाँ? और या ये हमारे पास नहीं है तो हम उसके बारे में मैं और सोच रहा हूँ, उसका सच्ची प्रेम मैं अभी समझ पा रहा हूँ। ये इसलिए जो साथ में रहना और दूर में रहना, ये दोनों का एक्सपीरियंस करना मुख्य है। इसके बारे में बात हो गई। हरे कृष्णा। इसी संबंध में हम लोग एक महान भक्त वृत्रासुर ने, उन्होंने अपना दूसरा चतुर्श्लोकी भागवत में बताते, विशितम विषन्ना मनो अरविंदाक्ष दुर्दिक्षते त्वाम। जैसी एक पत्नी, अपना पति तो बाहर गया हुआ, विलग हो गया कुछ कारण की वजह से, वो क्या करती है, बाहर खड़ी होती है, क्योंकि विरह ताप तभी बढ़ता है। मगर ये विरह ताप नहीं है तो आमने सामने जो संबंध है, वो स्पर्श है, उसका वैल्यू तो दिखता नहीं है। इसलिए यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती क्या बताता है, डायरेक्ट कांटेक्ट इज नॉट फुल्ली अप्रिशिएट, मतलब उसका मूल्य तो मालूम नहीं होता जब तक हम लोग विरह रहेगा। वहां भी वृत्तासुर वही बताता है, जैसी आप ऐसी हम लोग इंतजार है आपके लिए, आपका दर्शन के लिए इंतजार है, आपका आशीर्वाद के लिए इंतजार है, इसलिए आप हमेशा हमारे ऊपर कृपा करिए। कौन बता रहे? जैसी उनमें पक्षी के बारे में बताया, एक छोटा पक्षी है, माँ के लिए इंतजार करती है, जब तक वो आएगी उसको भूखा रहता है ना, वो आने के बाद इतना आनंद होता है। सो ये हमेशा विलग होने से जो अनुभव है वो कभी होता है जैसी हमको सामने जो स्पष्ट होता है उससे कभी भी प्राप्त नहीं। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो देयर इज अ सेपरेशन इज रिक्वायर्ड, देन ओनली विल नो द रियल वैल्यू ऑफ द रियल कॉन्टैक्ट। यही बता रहे हैं। हरे कृष्णा। बात ये भी है, कभी कभी हमारे माँ बाप के बारे में जब हम उनके साथ हैं, हम उनका जो दया है हम पर, प्रेम है जो हम पर, वो पूरे हम समझ नहीं पाएंगे। परंतु जो जिनको आशीर्वाद है पहले से, वो जो माँ बाप या जो परिवार साथ में है, उसको वैल्यू करके उसका सही संबंध या मूल्य समझ सकता है। कभी कभी हम ऐसे ही समझेंगे, जब लोग हमारे पास नहीं है तभी हम समझेंगे कि जब वे थे हम इनके साथ उतना व्यवहार नहीं किया, इतना समय नहीं स्पेंड किया। जैसे गुरु महाराज, हाँ, गुरु महाराज जब होते ही कितना समय हम गुरु महाराज के साथ बीतते हैं, गुरु महाराज की सेवा में कितने लगते हैं। बाद में हमको लगेगा वो श्रील प्रभुपाद जी तो अभी नहीं है हमारे साथ, तो इतना है ये सब, ये वो जो समय, जो मूल्य समय था उनके साथ, 5 मिनट हो 10 मिनट हो, इतना प्रसिद्ध समय था जब उनके सानिध्य में थे, उसका समझदारी हमको नहीं होता है, जब तक बाद में इसके समझदारी हमको हो सकता है कभी कभी। 48 तत्सौभगमनं वीक्ष्यमाणं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर
Diyata. Okay. Ratnabhushan Prabhu. Synonym. Tasam of them. Tat. Tasam of them. Tat that. Saubhaga due to their good fortune. Matham intoxicated state. Diksha observing. Manam the false pride. Cha and Keshavaha Lord Krishna. Parama Prashamaya in order to diminish it. Prasadaya to show them favor. Tatra eva right there. Antaradiyata he disappeared. Translation by Srila Prabhupada disciples ki jai. Lord Keshava, seeing the gopis too proud of their good fortune, wanted to relieve them of this pride and show them further mercy. Thus he immediately disappeared. Purport. The word prasadaya here is significant. Lord Krishna was not going to neglect the gopis. Rather, he would increase the power of their loving affairs by making another spectacular arrangement. After all, the gopis were basically proud of Krishna. He also made this arrangement, as we shall see, to show special favor to the beautiful young daughter of King Vrishabhanu. Thus, in the purports of the humble servants of His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada to the 10th Canto, 29th chapter of the Srimad Bhāgavatam entitled Krishna and the Gopis Meet for the Rasa Dance. Hare Krishna. हरे कृष्णा। इसके अंदर कभी कभी हम अपना अपना घर पे भी होता है, पति पत्नी के बीच में कुछ भेदभाव है, थोड़ा चिल्ला के कुछ बोलेगी, ये बोलेगा, राइट। मगर कुछ समय दोनों अलग हो गया तो उसके बाद क्या हो जाता है, उसका प्रेम बढ़ता है। यहाँ गोपियों ने जैसी भगवान को प्राप्त करने के बाद भगवान के संबंध में जो आनंद प्राप्त किया, जो परमानंद, उसमें क्या हो गया, उनको अहंकार बोलेगा तो एक याद रखना, दो प्रकार का होता है। यहाँ जो अहंकार है यह आध्यात्मिक है, मगर भौतिक जगत में हम लोग देखते हैं वो मिथ्या अहंकार है। सो जैसे ही उन्होंने आनंद में उन्होंने अपना आप थोड़ा गर्व आ गया, भगवान हमको प्राप्त हो गया। उन दो बहुत लोग, बहुत गोपी होते हैं, हर एक अंदर उनका हृदय में ये मेरा भगवान है, ऐसी सोच रही। इसी समय वो आसक्ति को और बढ़ाने के लिए भगवान थोड़ा समय के लिए विलग हो जाता है। क्यों? ऐसी ही उनको और भी स्पेशल कृपा करना है। इसका मतलब उसको तो हमेशा के लिए छोड़ के नहीं जाएगा। क्या करता है, ऐसी थोड़े समय निकलेगा तो क्या हो जाएगा, उनका अंदर हृदय के अंदर ताप बढ़ता है, विरहता बढ़ता है। बढ़ते बात में वापस भगवान सामने आएगा तो क्या होता है, आनंद, उसको अंत ही नहीं है। There is no limit there. So such a wonderful explanation it is given here. प्रसादाय मतलब ये तो महत्वपूर्ण है, साधारण शब्द नहीं है। क्या लिखा है उसका अनुवाद में, शो दम फेवर। दिस फेवर बोलेगा तो ये विशेष कृपा है। भगवान हर एक भक्त के साथ विशेष कृपा हमेशा करते रहते हैं। मतलब यहाँ तो शुद्ध भक्त के बारे में उन्होंने जो कृपा करता है उसको हम हिसाब नहीं कर सकते, इतना है। So this is the way the Lord is making a very special arrangement. उन्होंने जो भी योजना बनाते वो सब ठीक रहता है। उसी हिसाब से यहाँ थोड़ा समय के लिए भगवान विलग हो जाएगा और जितना भी गोपियां हैं हर एक अंदर हृदय में ताप बढ़ेगा। हरे कृष्णा। ऐसी ये अध्याय 29 संपूर्ण हो गया। अभी थोड़ा समय के लिए कीर्तन स्टार्ट। हाँ, राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे
भागवतम की हरे कृष्णा। अभी आगे बढ़ते हुए हम लोग अध्याय 30 में प्रवेश करेंगे। ये चैप्टर समरी पढ़ने के लिए मैं पहला मधुहर प्रभु को बुलाता है। मधुहर प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। हाँ पढ़िए। अध्याय 30 गोपियों के द्वारा कृष्ण की खोज, और इसका जो समरी है, सारांश, श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा, श्रील प्रभुपाद उनके शिष्यों की जय। इस अध्याय में बताया गया है कि किस तरह कृष्ण से बिछुड़ जाने से रात भर कष्ट भोगती गोपियां उनकी खोज में एक जंगल से दूसरे जंगल में पागल स्त्रियों की तरह घूमती रहीं। जब श्री कृष्ण रास नृत्य के स्थल से सहसा अंतर्धान हो गए तो उनके भाव में पूरी तरह मग्न गोपियां उन्हें कई जंगलों में ढूंढने लगी। वे समस्त जड़ तथा जंगम प्राणियों से कृष्ण का आता पता पूछने लगी। अंत में वे इतनी हतबुद्धि हो गईं कि वे उनकी लीलाओं की नकल उतारने लगी। बाद में घूमती हुई गोपियों को जंगल के एक कोने में श्री कृष्ण के पद चिन्ह दिखाई पड़े, जिनके साथ श्रीमती राधा रानी के पद चिन्ह भी मिले हुए थे। इन पद चिन्हों को देखकर वे अत्यंत व्याकुल हो उठी और कहने लगी कि अवश्य ही श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण की असामान्य पूजा की होगी, क्योंकि उन्हें ही एकांत में कृष्ण के संग रहने का अवसर दिया गया था। गोपियां मार्ग का अनुसरण करती हुई एक ऐसे स्थल पर जा पहुंची जहां उन्हें श्रीमती राधा रानी के पद चिन्ह दिखने बंद हो गए। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुंची कि कृष्ण ने अवश्य ही उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया होगा। अन्य स्थल पर उन्हें कृष्ण के पांवों के अंगूठे के ही चिन्ह दिखे, जिससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि कृष्ण ने अपनी प्रियतमा को सजाने के लिए यहाँ पर फूल तोड़े होंगे। एक अन्य स्थल पर ऐसे चिन्ह मिले जिससे गोपियां इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी के केश संवारे होंगे। इन सारे विचारों से गोपियों के मन व्यथित हो गए, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का श्री कृष्ण विशेष ध्यान रखते थे। हाँ मनोहर पात्र प्रभु आगे पढ़िए। मनोहर, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ आगे पढ़िए। चूंकि श्रीमती राधा रानी का श्री कृष्ण विशेष ध्यान रखते थे, इसलिए वे अपने को परम भाग्यशालिनी मानने लगी। उन्होंने कृष्ण से कहा कि अब वे और नहीं चल सकती, इसलिए उन्हें अपने कंधों पर ले चलना होगा। किंतु तभी कृष्ण उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। अत्यंत दुखित होकर श्रीमती राधा रानी सर्वत्र उन्हें ढूंढने लगी और अंत में उन्हें अपनी गोपी सखियां मिल गई। उन्होंने उन सबसे आप बीती बतलाई। तब सारी गोपियां कृष्ण की खोज के लिए जंगल से निकल पड़ी और जहां तक चांदनी थी गई, किंतु अंत तो गत्वा वे विफल हो गई। अतः वे यमुना तट पर लौट आई और घोर निराशा से कृष्ण की महिमाओं का गान करने लगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोका संख्या 1। शिशुकोवाच अंतर्हिते भगवती सहसैव भुजङ्गनाहा अतप्यं तम् अचक्षणाः करिण्य इव यूथपम। ओके, सुभाष। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य पर श्रील प्रभुपाद उनके शिष्य श्री शुक वाचा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अंतही अत्यंत धन हो जाने पर भगवान के सहसा एवं एक व्रज की विद्या अत्यपन खिन्न हो उठी। तम उसको अचक्षण न देखकर करिण्य हथियानी एव सदस्य यूतपम अपने पर नायक को। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भगवान कृष्ण इस तरह एकांत विलुप्त हो गए तो गोपियों उन्हें न देख सकने के कारण अत्यंत व्यथित हो उठी, जिस तरह हथिनियाम के समूह अपने नर के बिछुड़ जाने पर खिन्न हो उठता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ उपमान जो दिया है बहुत सुंदर है। हाथियों के बीच में ऐसी होता है, राइट। यहाँ भगवान के बीच में अंतर्ध्यान हो गया, गोपियों को
इतना दुखित होगी, क्योंकि जितना भी उनको जो चांदनी का जो दिखता है और उसका लाइट का अंदर भी देखती है, नहीं मिल रही है, राइट। आगे जैसी एक स्त्री हाथियों ने कैसी अपना साथ जो आया वो मिस हो गया, तो ऐसे होता। So this is a wonderful comparison. We can see it sometimes, especially the elephants हमेशा क्या होता है, ग्रुप में जाता है, अकेले जाता है, एक मिस हो गया तो भी हर एक उसके बारे में ढूंढ। So this is the way यहाँ गोपियों ने भी भगवान के लिए खोज है। श्लोका संख्या 2। ज्ञातानुराग स्मित विभ्रमेक्षितहि मनो रमा लाभ विहार विभ्रमैः अक्षिप्त चित्ताः प्रमदा रमापतेः तास्था विचेष्ट जगृहु तत् आत्मिकाः। Simran, I forgot your initiative name. What is it? Shyama Braja Sevin. Rajas. Since the translation of Srila Prabhupada, Louder. disciples of Srila Prabhupada, that by his movements. Anuraga, affectionate. Smita, smiles. Vibhrama, playful. Ikshitaihi, and glances. Mana, Rama, charming. Alapa, by his talking. Vihara, playing. Vibramaihi, and other allurements. Akshiptaha, overwhelmed. Chittaha, whose hearts. Pramadaha, the girls. Ramapatehe, of the husband of Rama, the goddess of fortune, or of the master of beauty and opulence. Taha, each of those. Vicheshtaha, wonderful activities. Jagruhu, they enacted. Tat Atmikaha, absorbed in him. Translation: as the cowherd women remembered Lord Krishna, their hearts were overwhelmed by his movements and loving smiles, his playful glances and enchanting talks, and by the many other pastimes he would enjoy with them. Thus absorbed in the thoughts of Krishna, the Lord of Rama, the gopis began acting out his various transcendental pastimes. Purport. Srila Vishwanath Chakravarti Thakura describes the following charming exchanges between Krishna and the gopis. Krishna said to a gopi, "My dear land lily, are you going to offer your honey to this very thirsty honeybee or not?" The gopi replied, my dear bee, the husband of the lilies is the sun, not the bee. So why are you claiming that my honey belongs to you? But my dear lily, the very nature of your lilies is that you don't give your honey to your husband, the sun, but rather to your paramour, the bee. The gopi, defeated by the words of Krishna, laughed and then gave him her lips as honey to drink. Srila Vishwanath Chakravarti also describes the following conversation. Krishna said to a gopi, I can understand that as you approached this nipa tree, standing here, you were bitten by an audacious snake. Its venom has already reached your chest, but since you are a respectable maiden, you haven't asked me to cure you. Still, I've come, being merciful by nature. Now, while I massage your body with my hands, I'll chant the mantra to counteract the serpent's poison. The gopi said, but my dear snake charmer, no snake has bitten me. Go massage the body of some girl who actually has suffered a snake bite. Come now, my dear respectable girl. From your trembling voice, I can tell that you are experiencing a feverish reaction to poisoning. Knowing this, if I don't take care of you, I'll be guilty of killing an innocent woman. So let me treat you. With this, Krishna applied his fingernails to the gopi's chest. हरे कृष्णा। जैसे एक विशेष अनुभव, ये तो गुह्य है,
इसके बारे में हम इतना ही सीख सकते हैं। यहाँ तात्पर्य में जैसे लिखा है, हर एक गोपियों ने भगवान को स्मरण करते हुए हृदय के अंदर इतना आनंद बढ़ रहा है, उमड़ रहा है। उन्होंने जितना भी मुस्कुराते हुए इतना उनको आनंद प्रदान किया है, उनको जितना भी चितवन देखे उन लोगों को आनंद बढ़ते हुए भगवान के बारे में बहुत बात करते हुए हर एक के ऊपर हमेशा उनका लीला को चेष्टितम को याद करके करती है। Thus they observed the thoughts of Krishna, the Lord Rama, the Lord of Rama. The gopis began to acting out of his various transcendental pastimes. So क्या होता है यहाँ गोपियों को विशेष स्मरण, जैसे भगवान ऐसे उनके साथ जितना भी लीला किया है हर एक को उन्होंने स्मरण करते हुए उसके ऊपर आनंद कर रहे। सो विरक्ता कभी ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे, कभी कभी जो हुआ है चेष्टित उसके बारे में सोच के यहाँ करते हैं। Any other thing you want to add? Okay. So moving on to the next one. Gita, you want to read the next one? Katisma. Katismita Kakshena Vasanadishu Priyaha Priyasya Prati Uda Murtayaha Māsa Mahan Tviti Avalas Dadatmika Yavedishu Krishna Vihara Vibramaha. Okay. I'll ask someone to read Gita. They are waiting here. Okay. Simi Mataji, synonyms. Hare Krishna Prabhu. Synonyms: Gati in his movements, Smita smiling, Prekshana beholding, Bhashana talking, Adishu and so on, Priyaha the dear gopis, Priyasya of their beloved, Pratirudha fully absorbed, Murtayaha their bodies, Asau he, Aham I, Tu actually, Idi speaking thus, Abalaha the woman, Tad Atmikaha identifying with him, Nevedishuhu they announced, Krishna Vihara caused by the pastimes of Krishna, Vibramaha whose intoxication. Translation by devotees of Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Because the beloved gopis were absorbed in thoughts of their beloved Krishna, their bodies imitated his way of moving and smiling, his way of beholding them, his speech, and his other distinctive features. Deeply immersed in thinking of him and maddened by remembering his pastimes, they declared to one another, I am Krishna. Purport. Spontaneously, the gopis began moving like Krishna. They smiled as he would smile, glanced boldly as he would, and spoke as he would. The gopis were completely absorbed in the existence of Krishna and mad with love at their sudden separation from him, and thus their dedication to him attained absolute perfection. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. No, I have nothing to say yet. Do you want me to read? Yeah. Four, huh? Text 4. No, 3. Four is correct. Gayantya Uchchair Amum Eva Samhata Vichikyur Unmattaka Vad Vanadvanam Prapachur Akashavat Antaram Bahir Bhuteshu Santam Purusham Vanaspati. Gayantaha singing Chahi loudly Amum about him Eva indeed Samhataha together in a group Vichikshu they searched Unmattakavat like mad women Vanat Vanam from one area of the forest to another Prapachuhu they inquired Akashavat like the sky Antaram internally Bahihi and externally Bhuteshu in all created beings Santam present Purusham the supreme person Vanaspatin from the trees. Translation. Singing loudly of Krishna, they searched for him throughout the Vrindavana forest like a band of mad women.
They even asked the trees about him. Who as the super soul is present inside and outside of all created things, just like the sky. Purple. Lost in the madness of love for Krishna, the gopis inquired about him from even the trees in Vrindavana. Of course, there's no actual separation from Lord Krishna, since he is the all-pervading super soul. So singing loudly is very important. As one shloka that my father used to always quote, Stavaihi uchavachehi stotrehi pauranehi prakatirapi sutva prasida bhagavanti vandeta dandavat shiromat bharyo bhagutva bhaupyam chatraspram prapannam pahi mamisha bitam mrityu granava stutva prasida bhagavanti vandeta dandavat स्तवैहि उच्चावचैहि स्तोत्रैहि उच्चा आवाज गाना है कि धीमे धीमे आवाज में करें तो जब तो ऐसा करना पड़ता है पर प्रार्थना कर रहे हैं भगवान में मंदिर को जाके मंदिर में जाके भगवान को देख रहे हैं तब उच्च आवाज से घोषणा करना कि हे गोवर्धन नाथ की जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय श्री राधा माधव की जय ऐसे घोषणा करते हुए जाना है और ऐसे बोल रहे हैं कि गोपी अभी कृष्ण के बारे में बहुत जोर से पुकार रहे हैं और पुकारते पुकारते वृंदावन में जैसे मध्य पूर्व जा रहे हैं और एक जगह से दूसरे जगह घूम रहे हैं और सभी वृक्ष और सभी जगह में ढूंढ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण किधर है और अंतर बाहिर अंदर भी और बाहर भी और सभी जीव जंतुओं में जैसे आकाश सभी जगह में फैला हुआ है ऐसे सभी जगह में जाके भगवान के बारे में पूछताछ कर रहे हैं और भगवान के बारे में ढूंढ रहे हैं भगवान को गोपियां उन्मत्त होकर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसमें और एक तात्पर्य में लिखा हुआ है, असल में देखेगा तो वो लोग भगवान से विलग नहीं है, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापी है। इसलिए वृक्ष के जाके पूछ रही है कहाँ है कहाँ है, मतलब हर जगह पे उनको भगवान को खोज सकते हैं मगर देख भी सकते हैं क्योंकि सर्वव्यापी है। इसलिए भगवान असल में उससे विलग नहीं हुआ क्योंकि स्मरण में रहता है। राइट, स्मरण में भी भगवान है, इसलिए मद हो गया। मद होकर उन्होंने जो भी चेष्टितम किया उसके बारे में सोच के अभी आगे उन लोगों को अंदर भी ये वापस हर एक मिमिक्री करेगा, ये करेगा वो करेगा, इसी का आगे आएगा। हरे कृष्ण। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जो सारार्थ दर्शनी में ये जो यहाँ के प्रकोप में वर्णन नहीं है उसमें बताया गया है कि लोग पूछ सकते हैं कि कृष्ण तो अकेले में राधा के साथ मग्न है जो चीफ गोपी है और इसलिए बोल रहे कि he even aware of the questions कि जो गोपियां सब दूसरे गोपियां सब उन्मत्त होते हुए इधर उधर भटक रहे हैं मन में, वो मालूम है कृष्ण को या नहीं है। राधा के साथ तो वो मग्न है और दूसरे गोपियों के स्थिति उनको मालूम है या नहीं है। और इसके लिए ये जो उत्तर दिया जाता है कि यहाँ अंतरम बहिर्भूतेषु ये शब्द कहा गया है, जो भगवान श्री कृष्ण सबके अंदर भी है और बाहर भी है। इसीलिए सभी गोपियों के अंत स्थिति के बारे में भगवान श्री कृष्ण को मालूम है। ऐसे नहीं कि वो राधा के साथ है इसलिए उनको मालूम नहीं है कि दूसरों गोपियों की स्थिति क्या है। अंतर बहिर्वस्थितम, अंतर है और बाहर है सभी जीव जंतु के, और इसलिए भगवान सबके जो परिस्थिति जानते हैं। और फिर बोल रहे जैसे आकाश सभी जगह में अंदर, बाहर भी है हमारे अंदर भी है, ऐसे भगवान सभी जगह में बाहर भी है और अंदर भी है जैसे आकाश के जैसे। दूसरा होता है कि भगवान उनके although Krishna's original form remains undivided, he is also omnipresent. भगवान श्री कृष्ण के जो रूप एक ही हैं, एक ही जगह में हो सकते हैं, एक ही है तो, परंतु भगवान को बोला जाता है कि वो omnipresent है, माने सभी जगह में। वो एक ही है परंतु सभी जगह में कैसे हो सकता है?
ये जैसे आकाश एक ही है, बाहर सभी जगह में है परंतु सभी जगह में अंदर है। इसलिए भगवान जो एक ही है परंतु उनका पूरा जानकारी है सभी दूसरे जीव जंतुओं के बारे में भी। ज्ञात्वामाम, भगवान क्या बोलते हैं जो दूसरे, he says in Bhagavad Gita there are many verses that quote to say that he is fully aware. क्षेत्रज्ञ जो बोलते हैं सभी क्षेत्र को जानने वाले एक ही हो सकते हैं भगवान। हम तो हमारे खुद के देह को भी ठीक से समझ नहीं पाते, परंतु भगवान सभी क्षेत्रों को ही समझते हैं। इसीलिए जरूर गोपियों की जो ये अवस्था है ये भी भगवान जरूर जानकारी भगवान को होगा। He is omnipresent. Therefore, Krishna heard the gopis' questions in those places, though unnoticed by them. तो ये गोपियां कृष्ण को देखे नहीं है, परंतु कृष्ण जिधर भी थे उनको मालूम था कि ये गोपी की परिस्थिति और गोपियां के जो प्रश्न सभी को जाके प्रश्न पूछ रहे हैं, वो प्रश्न क्या है उसके बारे में ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखे हैं इसमें। ठीक है, प्लीज। दृष्टो वह कश्चित् अश्वत्थ प्लक्ष न्यग्रोध नो मनः नंद सूनो गतो हृत्वा प्रेम हासावलोकनैः। विद्यागति। Drishtah has been seen by you, Kachit, whether Aswatha, O Aswatha, holy fig tree, Plaksha, O Plaksha, paved leaf fig tree, Nyagrodha, O Nyagrodha, banyan tree, Naha, or Manaha, minds, Nanda, O Maharaj Nanda, Sunuhu, the sun, Gataha has gone away, Itrutva, after stealing, Prema, loving, Hasa, with his smiles, Avalokanahi, and glances. Translation. The gopi said, O Ashwatha tree, O Plaksha, O Nyograda, have you seen Krishna? That son of Nanda Maharaj has gone away after stealing our mind with his loving smiles and glances. तो इसमें परपोर्ट नहीं है, परंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जो परपोर्ट पढ़ते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि यहाँ ये जो श्लोक में गोपियां 9 प्रश्न पूछ रहे हैं। तो परमेश्वर should have a full copy of Sarata Dashmi always, and इधर बोल रहे हैं कि गोपियां 9 प्रश्न पूछ रहे हैं। 5 जो श्लोका 5 से श्लोका 15 तक, ये 10 श्लोक में 9 प्रश्न पूछ रहे हैं गोपियां। और इधर बोल रहे हैं कि ये जो वृक्ष अश्वत्थ और ये सब दूसरे जो वृक्ष के नाम बताए हैं, ये सब वृक्ष बहुत ऊंचे चढ़ती है और ये वृक्ष इतने ऊंचे होने के कारण ये बोल रहे हैं कि उनको ऊपर से देख पा रहे हैं, जैसे ड्रोन से देखेंगे कि कृष्ण किधर होगा। हमारे नजदीक से हम देख नहीं पा रहे हैं कृष्ण किधर है, परंतु ये वृक्ष इतने ऊपर जाते हैं और ऊपर जाने के कारण ये वृक्ष सब बता सकते हैं कि कृष्ण किधर है। So Plaksha tree is the piru and Negrodha is the banyan tree. ये सब वृक्ष के बारे में बताते हैं, परंतु ये वृक्ष डर के बारे में बता रहे हैं कि ये गोपी हमको क्यों पूछे। कृष्ण भले नंद महाराज के पुत्र हो, आदि गोपी बोल रहे हैं, कृष्ण भले नंद महाराज के पुत्र हैं, परंतु वो हमारे हृदय को चुराते हुए भाग गए हैं और उनके जो दासों को बेचते हुए, तो जैसे हमारे से चुराने के लिए उनको बेचते हुए, और किसके साथ कैसे चुराते हुए, स्माइल, बहुत अच्छे स्माइल करते हुए हमारे के पास जो कुछ भी है वो सबको चुरा के भाग गए हैं। और he says glances along with a special bewildering portion of prema which matters everyone. हंसते हैं और हंसने के साथ साथ इतना एक प्रेम का प्रदर्शन करते हैं कि हम सबके हृदय को चुराते हुए भगवान श्री कृष्ण इधर से भाग गए हैं। फिर और गोपियां बोल रहे हैं कि पासिंग थ्रू द गेट्स ऑफ आवर आईज इनटू द सिटी ऑफ आवर हार्ट्स, जैसे बोलते हैं कि किसी
पति के हृदय को चुराना है तो उनको अच्छे प्रसाद खिलाना है। नहीं, राइम हो गया। पति के हृदय को चुराना है तो उनको अच्छा खिलाना है। और इधर गोपियां बोल रहे हैं हमारे आंखों से हमारे हृदय तक पहुंच गए भगवान। भगवान को देखते ही, उनके मुस्कुराहट को देखते ही हमारे हृदय तक भगवान हमारे हृदय को चोरी कर लिए हैं। उनके बस दृश्य करने से ही हमारे हृदय चोरी हो गया है। जैसे आज ओम गोविंद प्रभु श्रीमद् भागवत में भी कहते हैं कि भक्त का जो कौन है, अच्छे भक्त कैसे कह सकते हैं, वो भक्त को देखते ही किसी को भगवान के याद आए। भक्त को देखते ही भगवान के याद आए। इसलिए हमको तिलक लगाना है या जो खट्टी माला लगाना है, जो श्रील प्रभुपाद जी बोले कि यूनिफॉर्म जैसा है, परंतु एक भक्त को देखते ही भगवान के याद आ जाए, वही बेस्ट है। और इधर ये बोल रहे हैं कि कृष्ण आपको देखे, हम आपको देखते ही आप हमारे हृदय को पूरा चोरी कर लिए। और फिर बोल रहे हैं कि these thieves have stolen the jewel of our minds and run off. भगवान श्री कृष्ण नहीं, उनके दूसरे जो दास हैं वो सब आए हैं और हमारे हृदय को चोरी किए हैं और हमारे मन चित्त को, what is that shloka? चित्त चोर। No, we have another song, no? What are all the chor? Chauragraganyam. Purusham namami. Vijay prasiddham namanita choram. Kopangananam cha dukula choram. Aneka janma chita papa choram. Chauragraganyam purusham namami. और ये सब को चुराने के बाद भाग्य है। फिर बात हो रही है, हे वृक्ष, स्टैंडिंग सैलिटी फॉर द शॉर्ट टाइम। ये गोपियां पूछ रहे हैं, वृक्ष से बात कर रही है और फिर थोड़ा सा समय दे रही है वृक्ष को, थोड़ा कुछ आंसर मिलेगा या नहीं। परंतु ये जो वृक्ष, ये सब कुछ नालायक है। गोपी सोच रहे हैं ये वृक्ष सब नालायक है और ये इनका इतना गर्व है कि वो समझ नहीं पा रहे कि हम गोपी कौन, इसलिए हमको वापस में कुछ उत्तर नहीं दे रहे हैं, ये कुछ हमें उच्च नहीं दे रहे हैं। We have had enough of these trees who have meager fruits and are ignorant of the religious duty of helping others. ये वृक्ष के जो कर्तव्य होती है कि दूसरों को सहायता करने के लिए, हम गोपियां सब इतने कठिनाई में प्रश्न पूछ रहे हैं और ये वृक्ष सब वैसे ही खड़े हैं और हमको कुछ उत्तर नहीं दे रहे हैं। Besides, their buds are blossoming and their hearts are impure. उनके हृदय सच्ची भावना से नहीं है। Thinking in this way, the gopis left the trees and went elsewhere. So पहले वृक्ष को पूछे, ये सब वृक्षों को, और वृक्ष को क्यों पूछे इसके बारे में वर्णन है। वृक्ष को क्या पूछे और वृक्ष क्यों उत्तर दिए या क्यों उत्तर नहीं दिए, ये सब के वर्णन कैसे देखिए आचार्य लोग एक एक श्लोक का ये जो अनुभव करते हैं कि कैसे प्रश्न पूछा जाती है। और ये बस खाली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का ही नहीं होगा, ये सभी आचार्यों के जो ये से वो सब देख सकते हैं। परंतु ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के सारार्थ दर्शनी से सबको एक सारार्थ दर्शनी जरूर और करना है। श्री भानुस्वामी महाराज के ट्रांसलेट किए हुए सारार्थ दर्शनी है, पता नहीं मुझे हिंदी में है, परंतु जरूर इंग्लिश में है, पूरे 12 अध्याय का है। जैसे श्रीमद् भागवतम को रखना है, सारार्थ दर्शनी भी रखना है। ये बात है कि श्रीमद् भागवतम के जो तात्पर्य है सभी जो आचार्यों के तात्पर्य से ही लेते हुए है, परंतु एक दो जो श्लोक का तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जो ये प्रश्न उत्तर आती है, बहुत भी नहीं है। सोचे होंगे कि जितना जगह है उसके अनुसार करना है, परंतु बात है कि जब हम ये सब बहुत वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स जितने हो सके साथ में रख रख के हम चेक करें तो बहुत अच्छा होगा, सही समय में अनुभव बढ़ेगा, हाँ, और भाव बढ़ेगा। ओके, प्लीज नंबर 6। कश्चित् कुरभ काशोक नाग पुन्नाग। देखिए अनेक विविध प्रकार का वृक्ष का नाम आता है। नाग पुन्नाग चंपका रामानुजो ना मानिना मानिना मानी निनाम इतो दर्प हरस्मितः।
ये पढ़ने के लिए कविता सुभाष। कश्चित् वेदर पुरबगा अशोका नागपुन्नागा चंपका ओ पुराबगा Ashoka, Naga, Punnaga, and Champaga trees. Rama of Balrama, Anuja, the younger brother, Maninina of women who are proud by nature, Ida passing by here, Darpa the brider, Hara removing, Smita who smiled. O Purabaga tree, O Ashoka, O Naga, Punnaga, and Champaga has Balrama's younger brother, whose smile removes the audacity of all proud women passed this way. As soon as the gopis saw that a particular tree would not answer them, they impatiently left it and rushed off to another to make further inquiries. यहाँ वही वर्णन दिया सारार्थदर्शिनी में, जितना भी वृक्ष है उत्तर नहीं दिया होगा तो तुरंत चले जाती है। पहले बड़े वृक्ष के बारे में बात था, परंतु यहाँ जो है सब जो फ्लावर्स फूल देने वाले वृक्षों के वर्णन है इधर। नाग, पुन्नाग, चंपका एक्सेट्रा बोल रहे हैं कि ठीक है, ये तरीके के जो ट्रीज हैं जो, और ये और थोड़ा क्या बोलते हैं, दे आर मोर हेल्पफुल। क्यों? क्योंकि ये जो वृक्ष में है बहुत से फूल हैं, और ये फूल के जो रस है वो खोलते हुए देते हैं किसको? भ्रमर को देते हैं। वो भ्रमर आके ये जो इसके जो शहद पीते हैं, इसीलिए ये जरूर इनमें कुछ हो सकता है कि हमें उत्तर देंगे। वापस पूछ रहे हैं गोपी, इनको पूछ रहे हैं, और इनको जो पूछ रहे हैं कि हे कृष्णा किधर गए हैं, और किधर हाइड किधर कर रहे हैं। एंड सोचे हैं कि गोपी पूछेंगे, ये जो वृक्ष पूछेंगे, हे गोपियां आप क्यों पूछ रही है? इसीलिए बोल रहे हैं कि ये जो कृष्ण है उनके जो मुखारविंद से, उनके जो मुस्कुराहट से हमारे हृदय को वापस सोच रहे हैं कि हमारे हृदय को और हमारे जो गर्व को दोनों को चुरा के लेके गया। और ये जो हमारे जो गर्व के अधिपति है, ये जो कृष्ण, ये हमारे जो कुछ भी संपत्ति है ये सबको चुरा के लेके गए हैं, इनके बारे में बताइए। परंतु ये जो वृक्ष भी बोल रहे हैं, ये वृक्ष भी चुपचाप थे, और जब वायु आई थी, वायु जब आया, ये सब वृक्ष हिलने लगे। बड़े वृक्ष तो इतने आसान से हिलते नहीं है, ये जो छोटे वृक्ष सब हिल रहे हैं। जब ये वृक्ष हिल रहे हैं, वो सोच रहे हैं ये वृक्ष भी कंपन है, और ये वृक्ष भी हमको जरूर उत्तर नहीं देंगे। ऐसे सोचते हुए वापस ये वृक्षों को भी छोड़ते हुए दूसरे जगह में जाते हैं, और दूसरे श्लोक में जाके देखते हैं। हर एक किसमें श्लोक है? पहला वृक्ष बड़े वृक्ष को, अभी छोटे वृक्ष जो फूल देते हैं, इन सबको मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं। बस कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, अभी तुलसी के बाद आ गए। सहत्वाली कुलैर बिभ्रत दृष्ट थे अति प्रियो अच्युत, अति प्रिय अच्युत, अच्युत को बहुत प्रिय है तुलसी महाराज। यहाँ ये पढ़ने के लिए मैं यहाँ ऑनलाइन में कोई होगा। इसके पहले दूसरा बात है, वो जो कुछ भी फ्लावर देने वाले ट्रीज थे, उन सबको बोल रहे हैं दे आर ऑल मेल ट्रीज। अभी दे आर कमिंग टू ऑल द फीमेल्स। हरे कृष्ण। कल्पना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हिंदी ना पढ़िए प्रभु, इंग्लिश तो पढ़िए। कौन हैंडल कर रहा है? हिंदी दिखाओ ना। हाँ पढ़िए। 7 translation। हरे कृष्णा। शब्दार्थ श्रीला प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा। कच्चित क्या, तुलसी, हे तुलसी वृक्ष,
कल्याणी हे दयामयी, गोविंद कृष्ण के चरण पांव प्रिय जिन्हें प्रिय है, सह साथ त्वा तुम्हारे, अली भौरों के कुलय झुंडों के साथ, विवृध ले जाते हुए, दृष्ट देखा हुआ, ते तुम्हारे द्वारा द्वारा अति प्रिय, अत्यंत प्रिय, अच्युत भगवान अच्युत। हे अत्यंत दयालु तुलसी, तुम्हें जो गोविंद के चरण इतने प्रिय हैं, क्या तुमने अपने को तुलसी पहने और भौरों के झुंड से घिरे हुए उन अच्युत को इधर से जाते हुए देखा है? तात्पर्य, आचार्यों की व्याख्या है कि चरण शब्द उसी तरह आदर सूचक है जिस तरह एवं वदन्य वदन्याचार्य चरणाह में है। श्री गोविंद द्वारा पहनी माला के चारों ओर गुंजार करते भौरे उनको अर्पित की गई तुलसी मंजरियों की सुगंधित द्वारा आकृष्ट थे। गोपियों को लगा कि वृक्ष नर है, इसलिए उन्होंने उत्तर दिया, किंतु तुलसी से स्त्री है, अतएव उनकी दीन दशा पर अवश्य ही दया करेगी। हरे कृष्णा। इसमें वो पहले बात हो गई है, पहले तो तुलसी के बारे में बता रहे हैं कि ये स्त्री ही दूसरे स्त्री के जो कठिनाई समझ सकती है, इसलिए वो स्त्री के बारे में पूछ रही है। और इसलिए ये स्त्री के पास आके पूछ रही है तुलसी, जो सबसे प्रथम स्त्री है, और ये चीफ प्लांट तुलसी को पूछ रही है कि आपका जो स्पेशलिटी क्या है कि आप गोविंद चरण प्रिय हैं और गोविंद के पास हर वक्त हैं और कभी गोविंद से बिछुड़ते नहीं, क्योंकि भगवान गोविंद आपके माला हर वक्त पहनते हैं। जैसे जितने भी भ्रमर हो, तुलसी के माला पहनने के कारण इतने भ्रमर भगवान के ही आजू बाजू में घूमते हैं, पर फिर भी भगवान आपके जो ये माला पहनते हैं, ऐसे किसी कभी बिछुड़ते नहीं है भगवान आप तुलसी से। हाँ, ऐसे पूछ रहे हैं कि आप बता सकते हो, परंतु वो ये भी सोच रहे हैं कि तुलसी बोलेगी, हे गोपियां, आप बहुत भगवान श्री कृष्ण के पद कमल के बहुत प्रिय हो, आप सब, ऐसे तुलसी सोचेगी। इसीलिए ये तुलसी बोल रहे हैं, हाँ हाँ, हम तो गोविंद के प्रिय हैं, परंतु आप हमारे से भी अधिक प्रिय हैं भगवान श्री कृष्ण के, क्योंकि आपके पास जो है वो और स्पेशल कैरेक्टर है कि आप कभी गोविंद से बिछुड़ते नहीं, कभी नहीं रहते। उसके बारे में वो गोविंद हार पहनते हैं, और वो हार में जितनी भी कठिनाई हो, गोविंद फिर भी वो हार को निकालते नहीं, उसके बारे में बात। यहाँ आगे जितना फूलों विशेष फूलों उसके बारे में यहाँ वर्णन दिया हुआ है। मालती अदर्शी व कच्चिन मल्लिके याति युतिके प्रीतिम वो जनयन यातः करस्पर्शेन माधवः, भगवान का कर स्पर्श मिलकर इन्होंने ये इतना आनंद प्राप्त हो गया ये फूलों, इसके बारे में यहाँ वर्णन दिया हुआ है। ये पढ़ने के लिए मैं प्रतीक प्रभु। Synonyms: Malati, O Malati plant, a kind of white jasmine. Adarshi, has been seen. Vaha, by you. Kachit, whether. Mallike, O Mallika, a different kind of jasmine. Jati, O Jati, another kind of white jasmine. Yutike, O Yutika, yet another jasmine. Pritim, pleasure. Vaha, for you. Janayan, generating. Yataha, has gone by. Kara, of his hand. Sparshena, by the touch. Madhavaha, Krishna, the embodiment of the spring season. Translation and purport by Srila Prabhupada disciples. Srila Prabhupada ki jai. O Malati, O Mallika, O Jati and Yutika, has Madhav gone by here, giving you pleasure with the touch of his hand? Purport: when even Tulasi herself did not answer the gopis, they approached the fragrant jasmine flowers. The gopis, seeing the jasmine vines humbly bowing down, assumed that these plants must have seen Lord Krishna and were therefore showing humility in their ecstasy. और यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि तुलसी भी बहुत गर्वित थी, इसीलिए तुलसी हमारे कुछ गोपियां सोच रहे हैं कि हम हमारे प्रश्न के उत्तर नहीं दे रहे, इसीलिए ये जो मालती से पूछे, क्योंकि ये मालती ये तुलसी के को-वाइफ्स हैं,
माने जैसे तुलसी भगवान की सेवा करती है, मालती भी सेवा करती है, परंतु उनके बीच में कुछ कंपटीशन है। ये तुलसी जैसे भगवान के निकट है, उतने निकट जो नहीं है जैस्मिन, ऐसे सोचते हुए वो उनको पूछ रहे हैं, हाँ कृष्ण को जरूर आपको ये आपके फूल निकाले होंगे, और ये वर्णन उसके बाद में हो गया है। ठीक है, यहाँ देखिए 4 प्रकार का यहाँ लिखा हुआ है मोगरा, राइट। सबसे पहला क्या है? मालती। मालती मतलब ये प्रकार का ये मोगरा है। और आगे लिखते हैं मल्लिका। मल्लिका बोलेगा तो हम लोग तमिल में मल्लिका ही बोलते हैं, यही हम लोग बोलते हैं मोगरा हिंदी में, राइट। आगे जाति। जाति मतलब उसमें और एक विशेष एक जाति है, उसको कहते हैं जाति मल्ली। ये सब कुछ आप देख सकते हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, तमिल शब्द तो उच्चारण में गड़बड़ है, मगर पूरा संस्कृत का है। यहाँ पेरुमाल साहब जाएगा तो आपको जाति मल्ली पूछेगा तो उन्होंने देगा, उसका जो सुगंध है एकदम टॉप क्लास, मल्ली से भी बढ़कर होती है। और इसके अलावा और एक मल्ली है, नित्य मल्ली बोलते हैं, एकदम पतली पतली होगा। तो यहाँ हमारे घर में 3 मल्ली है। ये जो नित्य मल्ली है, जो बाहर अभी भी जाएंगे तो उसका सुगंध मिलेगा। और दूसरा जो मालती फ्लावर जो जिधर ज्यादा भ्रमण होता है, हाँ वहां जाएंगे तो वो मल्लिका इधर और उधर जो जगह में है वो माला बनाते हैं ना। दूसरा है आज जो दूसरा जो मल्ली है बड़ा सा, वो एक ही निकाल आया था, वो फ्रिज में है, लगता है कि नहीं डाला है। ये हम लोग बोलते हैं, हाँ गीता बोल दिया गुंड मल्ली। गुंड ये मल्ली दूसरा बोलेगा। टाइप ऑफ मल्ली है। पर जो मालती क्या है, इसको बोलते हैं रंगून फ्लावर, मालती लता, रंगून क्रीपर। ये अभी हमारे घर में फूलती नहीं है, परंतु जो 2 मालती फ्लावर का है, और ये जो 2 मालती फ्लावर का जो और थोड़ा बढ़ जाता है, उसमें जो फूल आती है पहले होते होते वो सफेद रंग की होती है, पहले रेड में आती है, पिंक में आती है, और फिर जाते जाते सफेद में हो जाती है। और इसका जो स्मेल है इतना स्पेशल स्मेल है। ये जो बड़ा मल्ली का स्मेल होती है, जो छोटा है उसमें स्मेल बहुत यूनिक है। अंदर में फ्रिज में देखे तो भगवान का ऑफर करते हैं। और फिर दूसरा थाईलैंड जैस्मिन है, वो भी 2 तरफ का है हमारे घर में, 2 बड़ा, उसका भी बहुत बहुत स्पेशल। ये बोलते हैं उसको टच नहीं करो, कुछ निकालो नहीं, क्योंकि वो निकालेगा तो उसमें फल नहीं है, फूल नहीं आए। बहुत कर रहा है उसका। मगर देखिए जितना भी सुगंध है उसका अनुसार उसका अंदर मधु भी बहुत है। क्योंकि बात यह है कि हम सब सिटी में हैं, हमको ये वृक्ष का नाम ही पता है, ये वृक्ष में क्या है, कौन सा क्या वृक्ष है, ये सब में हमारे केवीजे फार्म में जरूर ये सब वृक्ष को जरूर रखना है। क्योंकि बचपन मैंने सब कुछ देखा है, मैं इतना उसको पालन पोषण भी किया है, उसको कैसे करें। क्योंकि जैसे ये बता रही है, जब तक वो फूल झाड़ के अंदर छोड़ दीजिए, वो लता के अंदर छोड़ दीजिए, अलग अलग रंग होता है, मगर एक बार निकाल दिया होगा तो उसका रंग ज्यादा बदली नहीं होता। दूसरी बात है, परमेश्वर को जरूर मालूम होगा। ये भागवत सप्ताह के समय में बोल रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। जब कोई एक शादी होने के बाद पता नहीं होगा, नहीं शादी होने के पहले जब एक गर्लफ्रेंड को मिलते हैं ना, उसको साउथ इंडिया में पूरा एक स्पेशल फ्लावर जब भी मिलते हैं, एक पूरा जैस्मिन का, और कभी कभी बस इतना छोटा नहीं होती है, इतना 2-3 फीट का घूम घुमा के इधर रख के लेते हैं। मोटर बाइक में जाते हैं, बुलेट मोटर बाइक में, तो जरूर वो जो मल्लिका लगाना है। गीता परमेश्वरी माता जी हंस रही है, मुखारविंद से में पता लग गया है मुझे क्या है, प्रभु हर दिन खरीद के देते थे उनके लिए। देखिए इसको हम लोग कहते हैं चंड। चंड मतलब एकदम नजदीक में बनाया होगा रस्सी से, एकदम गैप बिल्कुल नहीं होगा, इतना क्लोज रहता है, उसको एक बार ऐसे पहनेगा तो बहुत समय के लिए उसका सुगंध रहता है। बहुत स्पेशल है। मल्लिका बाहर निकला तो जरूर बीवी के लिए कुछ खरीदा, खरीद के पहले ये देंगे। और सभी साउथ इंडियन लेडीज को देखेंगे बड़ा सा पहन के जाते हैं, मोगरा है। We wear minimum 2 hands. This is all nothing. We have to wear. हरे कृष्णा। इसके बारे में और भी वर्णन है, क्योंकि दक्षिण भारत में स्पेशली तमिलनाडु में शादी होने वाला वो लड़की को पूरा वो बाल है ना, उसको सजावट कैसे होता है,
सिर्फ मोगरा से होता है। कोई कोई को ऐसे ही हम लोग बोलते हैं ना केवड़ा, वो बोलते हैं ना, केवड़ा का जो फूल का क्या बोल के केवड़ा जल आता है ना प्रभु, उसका फूल का नाम येलो कलर में आता है ना, हम लोग तमिल में बोलते ताड़म्बू बोलते हैं। हाँ, तमिल में ताड़म्बू बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? चमेलिया। उसमें भी वो लोगों को इतना सजावट कर, देखिए अलग अलग यहाँ जितना भी लिखा है सब कुछ अभी भी है तमिलनाडु में, मगर पता नहीं है नॉर्थ में कैसे होता है, मगर साउथ में सब कुछ है। यहाँ पेरुमाल शॉप में अनेक तो इस तरह 3 वैरायटी का यहाँ मिलता है। बाकी इसमें क्या करते हैं, जो मल्लिका है, मल्ली को भगवान को अर्पण करने के बाद इसको घर लेके आते हैं, जो भगवान को अर्पित है उसको लेते हुए गर्म पानी में उसको उबालते हैं। जब गर्म पानी में उबालते हैं तब ये मल्लिका का जो जो सुगंध है वो पूरे पानी में आ जाता है, और वो पानी को शुगर से मिक्स करने के बाद वो पूरा प्रिजर्व करके रखते हैं और हर एक बार उसे खाते हैं। भागवतम क्लास तो भगवान के जो रचना जो है उसके बारे में भी समझना है, मल्लिका के बारे में। अरे कृष्णा, ये मल्लिका के बारे में आपको विशेष बताता हूँ। जैसे उन्होंने बताया यहाँ हवेली सीना जी जिधर जिधर भी है वो लोग हमेशा मांगता है सिर्फ मोगरा को। मोगरा भी कैसे, ऐसी चंड नहीं बनाने का, वो लोग को लूज भी चाहिए। कभी भी हम चेन्नई से आएगा तो क्या करता है, गुलाब और मोगरा लूज में बहुत 2 किलो 3 किलो लेके आता है। सुबह सुबह देगा तो इतना वो लोग इतना अच्छी तरह से उसको माला बनाता है, हर एक पेटल्स को निकाल के उन्होंने माला बनाता है। दैट्स वेरी स्पेशल। यहाँ इतना बुढ़ापा में वो लोग इतना श्रद्धा पूर्वक वो माला बनाती है कीर्तन करते हुए। मतलब यहाँ फूल का इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया हुआ है, क्योंकि भगवान को अर्पित करने के लिए क्या चाहिए, सुगंध का फूल चाहिए। बिना सुगंध होगा तो दक्षिण भारत में स्पेशली तमिलनाडु में वो लोग उपयोग नहीं करेगा। मैरीगोल्ड वगैरह कोई भी विष्णु मंदिर में नहीं, कोई भी टच नहीं करेगा, ये याद रखना। कोई के विषय आपको मालूम नहीं है, ये तो भागवत से तो अलग अलग सब्जेक्ट है, फिर भी आपको समझाने के लिए। Marigold never. हरे कृष्ण। श्लोका नंबर 9। गीता, you want to read the next one? 9. Chuta. प्रियाल पनसासन कोविदार जम्बर्क बिल्व बकुलाम्र दीपाः परार्थ भवका यमुनोपकुलाः संशन्तु कृष्ण पदवीं रगितात्मनां नः। हरे कृष्ण। अभी पढ़ने के लिए मैं बुलाता हूँ, कोई का चांस नहीं मिला। तेजस्विनी माता जी पढ़िए माँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। च्युत, O mango creeper. Priyala, O priyal tree, a kind of sal tree. Panasa, O jackfruit tree. Asana, O asan tree, a yellow sal. Kovidara, O kovidara tree. Jambu, O rose apple tree. Arka, O arka plant. Bilva, O bale fruit tree. Bakula, O mimosa tree. Amra, O mango tree. Kadamba, O kadamba tree. Nipaha, O nipa, a smaller kind of kadamba. Ye, who. Anve, others. Para, of others. Artha, for the sake. Bhavakaha, whose existence. Yamuna upakulaha, living near the bank of the river Yamuna. Smasantu, kindly tell. Shamsantu, Mataji, Shamsantu. Samsantu, kindly tell. Krishna Padvim, the path Krishna has taken. Rahita, who have been deprived. Atmanam, of our minds. Naha, to us. Thank you, Prabhu ji. ट्रांसलेशन पढ़िए जी प्रभु, ऊपर कीजिए विद्या। ओके, ट्रांसलेशन।
O Chuta, O Priyala, O Panasa, Asana, and Kovidar, O Jambu, O Arka, O Bilva, Bakula, and Amra, O Kadamba and Nipa, and all you other plants and trees living by the banks of the Yamuna, who have dedicated your very existence to the welfare of others. We gopis have lost our minds, so please tell us where Krishna has gone. Hare Krishna. Hare Krishna. Purport. According to Srila Jiva Goswami, the Chuta is a mango creeper, whereas the Amra is a mango tree. He goes on to explain that the Nipa, though not a very prominent tree, bears large flowers, and that the gopis' desperation to find Krishna is clearly shown by the fact that they approach the insignificant Arka plant. Srila Viswanatha Chakravarti Thakur gives the following information about the Vrindavana trees. The Nipa is the dust Kadamba, and it has got large flowers. The Kadamba proper has smaller flowers and a very pleasant fragrance. The Kovidhara is a particular kind of Kanchanara, mountain ebony tree. Even though the Arka is insignificant, it always grows near Lord Gopeshwara Mahadeva, the Shiva deity in the Vrindavana forest, because it is dear to him. Hare Krishna. You got some more explanation on that? Okay. So यहाँ जीव गोस्वामी ने समझाता है चूता के बारे में. चूता तो देखिए हमेशा आम बोलेगा तो वो झाड़ होता है, कभी भी लता नहीं होता है. यहाँ इसमें लिखा है चूता बोलेगा तो ये आम है मगर ये तो लता है. और आम्र बोलेगा तो प्रॉपर वृक्ष है, आम का वृक्ष. और उन्होंने नीपा के बारे में बताता हुए इतना प्रोमिनेंट नहीं है, प्रबल्य नहीं है, मगर आगे क्या लिखता है, मगर इनका अंदर जो फूल होता है एकदम बड़ा बड़ा होता है. राइट. गोपियों ने आउट ऑफ डिस्परेशन, मतलब इतना वो लोगों को एकदम फ्रस्ट्रेशन हो गया, आगे जाके यही पूछते हैं अप्रोच द इनसिग्निफिकेंट अर्का प्लांट. अर्का करके और एक है, मगर इसमें अर्का के बारे में आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बताते हैं. अर्का में जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर वो तो हमेशा कहाँ होता है, ज्यादा गोपेश्वर महादेव मंदिर के पास होता है. इट ग्रोस नियर द लॉर्ड गोपेश्वर. हरे कृष्ण. Shall we move on to the next one? पुलियार पोटता ना अर्का मरो. वो भी है यार. कथा जब हो जाती है एक बार घूमते हैं, वो अर्क भी दिखा देते हैं. वो अर्क जो है गणेश को भी अर्पण करते हैं. उसका जो அடுத்தது வருது பூ. दुर्वा नहीं है प्रभु. ये अर्का बोलेगा तो थोड़ा सफेद होता है, छोटा छोटा उसका छोटा होता है. और इसका जो पत्ता है बाद में दिखाता हूँ आपको. और ये जो पत्ता है रथ सप्तमी ऐसे समय में यूज करता है. इसको सर में रखते हुए नहाना है मंत्र बोल के. और ये जो उसका जो ये थोड़ा पॉइजनस होती है, परंतु इसके जो फ्लावर है इसको गणेश चतुर्थी के समय में जरूर गणेश को अर्पण होती है. ये ऐसा फ्लावर हमारे घर में है, बड़ा सा एक पेड़ दिखाते हैं इसका. हाँ, you read that next. Prabhuji, you have to post all the pictures on Srimad Bhāgavatam. All the pictures. We'll take pictures for a moment. Who's that? Gopi Gita? Yeah. Okay. Gopi Gita has to come. Yeah. ये अच्छा, वो आके देखेगा तो आसान हो, पोस्ट करने की जरूरत नहीं. Yeah, then even I can smell, no? Yeah. श्लोका नंबर 10. किम ते कृतं शिति तपो भत केशवांग्री स्पर्शोत्सवो पुलकितांग रुहैर्विभासी अपि अंग्रि संभव उरुक्रम विक्रमाद्वा आहो वराह वपुष परिरंभनेन. किम, what, they, by you, कृतं, perform, shiti, O earth, tapa, austerity, bhata, indeed, Keshava, of Lord Krishna, angry by the feet, sparsha, on account of being touched, utsava, due to the joyful experience, utpulakita, standing on the end in jubilation, angaruhehi, with your bodily hairs,
the grass and growing plants on your surface. Vibhasi, you appear beautiful, happy, perhaps hungry by the feet of Krishna present now on your surface. Sambhavaha, generated, Urukrama of Lord Vamanadeva, Lord Krishna's dwarf incarnation, who covered the entire universe in 3 mighty steps. Vikramat, because of the stepping, Va, or Aha, U, or else perhaps Varaha, of Lord Krishna's incarnation as a boar, Vapushaha, by the body, Parirambhanena, because of the embrace. Translation. O Mother Earth, what austerity did you perform to attain the touch of Lord Keshava's lotus feet, which has brought you such great joy that your bodily hairs are standing on end? You appear very beautiful in this condition. Was it during the Lord's current appearance that you acquired this ecstatic symptom, or was it perhaps much earlier when he stepped upon you in the form of the dwarf Vamanadeva, or even earlier when he embraced you in his form of the boar Varahadeva? Super. अभी भूमि माता के बारे में है, इसके परपोट पढ़ते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का भी एक्सप्लेनेशन है, इसके और इसके अलावा जो कुछ भी है उसके बारे में बताऊंगा। ये तात्पर्य में बताते हैं, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर explains the thoughts of the gopis as follows. Perhaps the trees and plants mentioned in the previous verses, जो दूसरे वृक्ष और फूल देने वाले वृक्ष, फल देने वाले वृक्ष, ये सब बताते नहीं है, and did not hear our question. हो सकता है कि वो मग्न है, भगवान के उनके चित्त में रखते हुए मग्न है, इसलिए हमारे प्रश्न के उत्तर नहीं दिए। उनको दोष बताते हुए हमको क्या लाभ मिलती है? दूसरों के बारे में दोष नहीं कहना है। और perhaps they were in a trance meditating on Lord Vishnu. इसमें दूसरों को भी निंदा नहीं करना है, इसके बारे में भी बताते हैं कि दूसरों को क्यों निंदा करना है। तो उनको पता नहीं होगा, अपने भी हम सोच रहे हैं कि उनका गर्व है इसलिए हमको नहीं बताएं, परंतु ये बात है। और perhaps since they will not tell us where Krishna has gone, they are hard-hearted even though they live in a holy place. हो सकता है कि वो धाम में है इसलिए उनका थोड़ा गर्व बढ़ गया है कि वो हमारे काम को उत्तर नहीं दे रहे हैं। Anyway, what is the use of unnecessarily criticizing the residents of holy place? धाम वासियों को निंदा नहीं करना है, धाम वासियों के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना है। We cannot tell if they really know where Krishna has gone. So let us find someone who definitely knows where he is. अभी हम पता करेंगे, वृक्ष को छोड़िए, और कोई जो जरूर कृष्ण किधर है उनको पता होगा। अब फिर बोल रहे हैं, thus the gopis concluded that since Lord Krishna had to be somewhere on the earth herself must know his whereabouts. भूमि में जरूर, ये मन में नहीं है, वो मन में, परंतु किसी ने किसी जगह में भूमि के ऊपर ही होना है उनको, इसलिए भूमि को तो जरूर पता होगा। भूमि माता को पूछ लेते हैं। फिर बोल रहे हैं, गोपी सोच रहे हैं, since Krishna always walks on the earth, और इसीलिए भूमि तो वापस, जैसे तुलसी कभी बिछुड़ती नहीं है भगवान श्री कृष्ण से, ऐसे भूमि भी कभी बिछुड़ती नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहीं ना कहीं भूमि में अवतरित है और भूमि में है, इसलिए कभी बिछुड़ती नहीं है, इसीलिए वो जरूर समझेंगे। As never separated from him and thus cannot understand how much his parents, girlfriends and servants suffer in his absence. फिर सोच रहे हैं, ठीक है, ये तो कभी बिछड़ी नहीं है कृष्ण से, कृष्ण तो उनके ऊपर हर वक्त है, इसलिए उसको कैसे मालूम होगा जो हम भगवान श्री कृष्ण के पिता माँ, या हम जो उनके जो गोपियां हैं, हमारे जो परिस्थिति वो समझ नहीं पाए। फिर सोच रहे हैं कि लेट अस आस्क हर व्हाट ऑस्टिटी शी परफॉर्म। अभी उनको पूछे नहीं कि भगवान कृष्ण किधर, पूछने का तरीका, क्वेश्चन अलग होगी। अभी पूछने का तरीका क्या है? आप क्या ऐसे कर्तव्य किए हो, तपस्या किए हो, जिससे भगवान आपसे कभी भी छूटते नहीं? पूछने का तरीका बदल गया है। इसलिए let us ask her what auspicious perform to gain the great fortune of being constantly touched by the feet of Lord Krishna. हरे कृष्ण। इसमें एक विषय याद रखना, भागवत विषय में गोपियों को इतना बुद्धि है, राइट? हम लोग भौतिक विषय में अनेक खोज के हर एक विषय समझने के लिए, पाने के लिए कोशिश करता है, मगर यह गोपियों ने क्या करते हैं, भगवान का और वापस साथ में आनंद करने के लिए
उन्होंने अनेक तरीका से कोशिश कर ली, मगर उसी समय पे वो क्या सोच रही है, ऐसी हम सवाल पूछेंगे तो उत्तर नहीं मिलेगा, राइट। हम दूसरा तरीका पकड़ेंगे, उसी से हमको मालूम होगा, वो तरीका हमको आगे कर सकते। सो ब्रिलियंट, क्योंकि वो लोग तो इतना बुद्धिमान गोपियों ने। तो इधर बोल रहे हैं कि भगवान के स्पर्श से आपको क्या हुआ? पुलकांकित। पुलकांकित माने क्या है? जैसे जब हम पुलकांकित हो जाते हैं, जब किसी अच्छे कीर्तन सुनते हैं या किसी बात करने से सुनते हैं, जब पुलकांकित हो जाते हैं, हमारे जो शरीर के ऊपर जो रोम है खड़ी हो जाती है। तो बोल रहे हैं कि भूमि माता आपको तो भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श हर वक्त होती है, इसीलिए आप भूमि के ऊपर इतने जो घास जो और या बहुत से हर्ब्स आती है, वो पुलकांकित होते हुए खड़ी हो जाती है। हाँ, और इसलिए वो सभी जगह में है, उसके बारे में वर्णन है। और जब बस बोल रहे हैं कि वामन जी एक पैर आपके ऊपर जोर से रखे और दूसरे पैर को लेते हुए स्वर्ग तक चले गए, इसलिए आपको भगवान के स्पर्श वैसे भी मिला। और दूसरा बात है वराह देव का, जो भूमि माता को उठा के लेके आ रहे हैं, वराह देव के जो आलिंगन से जो उठा के आए हैं, वराह देव का वो भी स्पर्श आपको मिला, उसके बारे में वर्णित है। ये सब बहुत यूनिक है, जो अलग अलग भगवान के जो सृष्टि के बारे में, भगवान के जो अलग अलग भक्तों के या उनके सृष्टि से कैसे संगत है, उसके बारे में जब पढ़ रहे हैं, क्या इतना अच्छा वर्णन है। ऐसे आसान से बोल सकते हैं कि सबको पूछ लिया, परंतु एक एक वृक्ष के क्या प्रश्न पूछे, एक एक भूमि के क्या प्रश्न पूछे, और इसके अंदर इतना तात्पर्य है, इसके अंदर इतना सोच समझते हुए कि आचार्य सब लिख रहे हैं उसके बारे में। हरे कृष्णा। अभी सिर्फ हम लोग जैसे तिरुपावी पढ़ते थे मार्गशीर्ष मास में, उसमें तो विविध प्रकार का भगवान का अवतार, विविध प्रकार का भगवान का नाम और भगवान को रूप सब कुछ वर्णन है। यहाँ भागवतम में सिर्फ इतना ये गोपियों ने बता रहे, इसमें भी विविध प्रकार का लीला के बारे में बताते। एक तो वामन देव का हो गया और दूसरा तो श्री आदि वराह देव। यहाँ गोपियों को क्या होता है, हर एक लीला में भगवान कैसे हर एक के साथ व्यवहार किया, उसमें से कैसे वो लोग आनंद प्राप्त किया, वो ही सोच के वो लोग ऐसी कुछ तरीका हम लोग भी कोशिश करेंगे भगवान को साथ आनंद। सो दिस आर द डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोच टू गेट द लॉर्ड। हमेशा प्रभु बताता ना, ये न के न प्रकार मनः कृष्ण। सो यो गोपियों ने बहुत विविध प्रकार का रास्ता पकड़ के भगवान को प्राप्त कर, बस इतना ही वो सोच। सच अ वंडरफुल श्लोक। हरे कृष्णा। अभी आज के लिए हम विराम करें। Go up to 15. 15. Because from 5 to 15 is the questions that they ask. So finish up to 15, 15. Yeah. What is the number? 4 more shlokas. We are in 11. Go for 4 more shlokas, then you finish a batch. You have more explanations for that? Up to that? Okay. Yeah. Till 15. So the gopis' questions, there are 9 questions. Okay. It starts from verse 5 4 to verse to 15. 4 to or 15? 5 to 15. 5 to 15. Then it's In that there are 9 verses. Yes. So you finish 6. Finish the others. अप्येन पत्नी उपगतः प्रिया हेह गातरैः तन्वन् दशम सखीसु निवृत्तिम् अच्युतवः कान्तांग संग कुच कुंकुम रंजितायाः कुंद सज कुलपतेरिह वाति गंधः। ओके, ये पढ़ने के लिए मधुपति प्रभु, हाँ ये प्रभु को भी चांस नहीं मिला। आप शब्दार्थ पढ़ो, वो अनुवाद पढ़े। हाँ इंग्लिश Api Veda, Ina of the deer, Patni, O wife, Upagata,
has been encountered. Priyaya, together with his beloved, Iha here. Gatreya, by his bodily limbs. Tanvan, producing. Drasam, of the eyes. Sakhi, of friend. Su, Nirvatim, great pleasure. Achyuta, the infallible Lord Krishna, Vah, your. Kanta, of his girlfriend. Angasanga, because of the physical contact. Kucha, on the breast. Kunkuma, by the vermilion powder. Ranjitya, colored. Kunda, of the jasmine flower. Sraja, of the garland. Kula, of the group of gopis. Path, Pateh, of the master. Iha, around here. Vati is blowing. Gandha, the fragrance. Okay, translation. Madhupati. O friend, the wife of the dear as Lord Achyuta, being here with his beloved, bringing great joy to your eyes. Indeed, blowing with this way is the fragrance of his garland of kunda flowers, which are smeared with the kunkuma from the breast of his girlfriend when he embraced her. Purport. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur provides the following charming commentary on this verse. The gopis spoke to dove. O friend, wife of dear, from the bliss in your clear eyes, we can tell that Sri Krishna has expanded your joy with the beauty of his limbs, his face, and so forth. You are eager to realize the ecstasy of seeing Krishna, and thus your eyes are following him. In fact, he is never lost you. Then the gopis, seeing the dove continue to walk in her natural way, exclaimed, "Oh, are you telling us that you have seen Krishna? Look, as this deer walks, she constantly turns her head back to us as if to say, I will show him to you. Just to follow me, and I will show you Krishna. In this merciless Vrindavana, she is the only merciful person. And as the gopis follow the dove, they happen to lose sight of her and they cry out, Oh, why can't we see the deer who is showing us the way to Krishna? One gopi suggests that Krishna must be somewhere in the vicinity and that the deer, being afraid of him, must have hidden herself to avoid the possible mistake of revealing his presence. Conjecturing in this way, the gopis detect a fragrance that has by chance blown their way, and they repeatedly declare with great joy, Yes, yes, this is it. By Krishna's physical contact with his girlfriend, his jasmine garland was smeared with the kunkuma powder on her breast, and the fragrances of all these things are reaching us. Thus the gopis smelled the aroma of two lovers' bodies, of Krishna's jasmine garland and of the cosmetic powder on the breast of his lover. Bahum priyams upadaya grihita padmu Ramanuja Tulasi Khali Kuler Mandandaihi Anviyamana Ihavastaravaha Pranamam Kimbabi Nindanti Charan Pranayavalokaihi Bahum, his arm, Priya, of his beloved, Hamse, on the shoulder, Upadhaya, placing, Grihita, holding, Padmaha, a lotus, Rama, Anujaha, Krishna, the younger brother of Balarama,
Tulsi Ka, swarming around the Tulsi Manjaris, which are ornamenting his garland. Ali Kulaihi, by the many bees. Mother, with intoxication. Andaihi, who are blind. And Anviyamanaha, being followed. Iha, here. Vaha, your. Karavaha, O trees. Prananam, the bowing down. Kim, va, whether. Ambinandanti has acknowledged Charan while walking by. Pranaya, imbued with love. Avalokaihi, with his glances. Translation. O trees, we see that you are bowing down. When the younger brother of Rama walked by here, followed by intoxicated bees swarming around the Tulsi Manjaris, decorating his garland, did he acknowledge your obeisances with his affectionate glances? He must have been resting his arm on the shoulder of his beloved and carrying a lotus flower in his free hand. Purport. The gopis saw that the trees bent over with abundant fruits and flowers were offering obeisances to Lord Krishna. The gopis supposed Krishna must have recently passed that way since the trees were still bowing down. Because Sri Krishna had left the gopis to go with his favorite consort, they are jealous and thus imagined that he had become fatigued from his loving affairs and was resting his arm on the soft shoulder of his beloved. The gopis further imagined that Krishna must have been carrying a blue lotus in his right hand to drive away the bees eagerly trying to attack his beloved face after smelling its aroma. The scene was so beautiful. The gopis imagined that the maddened bees had left the Tulsi garden to follow the two lovers. Prachatema lata bahun apya ashlishta vanaspatehe nunam tat karajas prashta vibrati utpula kani aho. Prachata, just ask, imaha, from these lataha, creepers, bahun, the arms, branches, api, even though, ashlishtaha, embracing, vanaspatehe, of the tree, nunam, certainly, that, taritat, of him, Krishna, karaja, by the fingernails, sprashtaha, touched, vibhrati, they are bearing, utpula kani, joyful eruptions on the skin. Aho, just to see. Translation. Let us ask these creepers about Krishna. Even though they are embracing the arms of their husband, this tree, they certainly must have been touched by Krishna's fingernails, since out of joy they are manifesting eruptions on the skin. Purport. The gopis reasoned that the creepers would not show sign of rapture merely by physical contact with their husband, a tree. Thus, the gopis concluded that although the creepers were embracing the strong limbs of their husband, they must have been touched by Lord Krishna as he moved through the forest. Next. This is the last of the question. 14. After that, they start thinking about some next. Yeah, different ones. Having spoken these words, the gopis, distraught from searching Krishna, began to act out of his various pastimes, fully absorbed in thought of him. Questions are finished, with the last being creepers here in verse number 13. Oh. So now we are in 14. No, you don't need to go. You can do 14 batch later. So after this are questions. Yeah. The answers will come later. Hare Krishna. No, there's drama and dance. Yeah, that's what. It is depicted through the dance and drama. Yeah. They exhibit so many mimicrying, so many wonderful things will be there. Then you can see the kala, 64 kalas, no? After that, many kalas will be displayed from tomorrow onwards. How they are capable of doing this. That's very interesting. Hare Krishna, Grantraj ki jai. आज विराम करेंगे आज के लिए ओके हाँ कर्पूर आरती सो नमस्ते नरसिम्हाय और लॉर्ड सिंह टुगेदर
Namaste
It just so happened that another program got cancelled, so I thought we take the opportunity and definitely thank Mahamani Krishna Prabhu for bringing us to this level of consciousness of the importance of Bhagavatam, bringing us to the devotional sphere in serving Srila Prabhupada. And again, I would like to also thank Gita Parameshwari and Parameshwar Gaur Prabhu for very beautifully carrying on the legacy and doing this wonderful Bhagavad Saptaha of the Bhagavata reading, which is core. We need to continue to read on a very, very regular basis. It's so wonderful. Hare Krishna. Thank you. हरे कृष्णा। आज का यजमान श्रीमान श्रीवल्लभ प्रभु और उनका धर्मपत्नी सीता चौर माता जी और सुपुत्र पुंडरीका और मयूरी और श्याम सुंदर Chiranjeev Shyam. Oh, okay. I get it the other way. Chiranjeev Shyam, then Janaki और रघु तिलका और हर ग्रेस परिपूर्ण राधा देवीदास माता जी, ये कुटुंब के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। इन्होंने हमको ये श्रीमद् भागवतम प्रदान किया है, इसके वजह से हमको इतना भी इसके बारे में बोल सकते, क्योंकि कथा रूप में मैं बचपन में सुना हुआ है। मेरा माता पिता को भी ज्यादा रुचि है प्रवचन सुनने में, उनके साथ हमेशा जाते जाते हम प्रवचन सुनते थे, मगर वो जो भी है पूरा कथा रूप में। मगर ऐसी श्रील प्रभुपाद का कृपा और शिक्षा गुरु महामणि कृष्णदास प्रभु का कृपा, ये भागवत को और भी अनुभव करना और इसके अंदर मग्न होने के लिए भी और प्राप्त हुआ है। सो ये कुटुंब के लिए हम लोग प्रार्थना करनी चाहिए। इसके अलावा हिज होलिनेस जयप्रताप स्वामी महाराज स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, हम लोग तीव्र प्रार्थना करना चाहिए। और प्रेयर फॉर प्रभा रमेश और प्रेयर फॉर प्रेम का पिताश्री के लिए, और चित्तहरि प्रभु का अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए जरूरी है। और तुलसी गोविंद का तबीयत के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। देन वी हैव प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर सिंधिल परमेश्वरी, उनके लिए, वो फैमिली के लिए जरूरी है। और नरेंद्र रोचानी के पिताश्री के लिए, नरोत्तम कृष्णदास ये सब के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे 3 बार। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare. Thank you. I just thought of only one thing now. When I heard remember about Tulsi Govardhan Prabhu problems with his leg.